pleasure to welcome you all for this inspiring session, How Zindagi Ki Baat Kare, organized by Anuvrat Vishwa Bharati Society. It is not merely an organization, it's a movement dedicated to creating excellent built on human values, ethics, self-discipline, and a character. It is affiliated with a civil society department of the United Nations and has been carrying this noble mission across India through more than 200 Anuvrat Samitis supported by thousands of committed volunteers. One of its remarkable initiatives is Elevate, Experience the Real High. The program aims to empower the youth to say yes to life and no to various habits. It addresses the real challenges faced by today's young generation: academic pressure, peer influence, fear of missing out. In your word, it's called FOMO, I believe, and emotional stress, many other issues, rather than merely warning against substance abuse. It inspires young minds to discover their inner strength, self-confidence, and purpose of life. At SPCM, we are always believe that education is not confined to the books, examination, or professional success. Our vision has been to develop being human chartered accountants. Professional competence without discipline, without values, is incomplete. Therefore, today's program perfectly aligns with the culture and philosophy of our organization, SPCM, that is sincerity, professionalism, commitment is our motto. And today's speaker, honestly, needs no introduction, but I have a privilege being his elder brother in the profession to describe a younger one who has been developed so many youths and become the mentor of so many youths in his professional life of more than 15 years. C.A. Mudit Bansali is a unique personality who wears many hats with equal excellence: a chartered accountant, a poet, gramphologist, and a self-motivator. He firmly believes the power of you. You means for him your originality and uniqueness. His message is simple yet profound. Every individual is born with a unique purpose, and success begins when we discover and celebrate our originality instead of copying others. Being a cricket lover of myself, I would like to introduce him with a cricket language. If Kapil Dev, a greatest all-rounder, symbolizes all-round excellence, MS Dhoni represents calm leadership and wise decision-making. Virat Kohli stands for passion, discipline, relentlessness, and pursuit of excellence. And young Vaibhav Suryavanshi reflects fearless energy and the confidence of youth. Then C.A. Mudit Bansali is a wonderful combination of all these qualities. The greatest all-rounder by all means. I am confident that today's session will not only inform us about but also transform our thinking. I assure you that when you complete, each one of you will find yourself 180-degree transformation. And that's mine. So I request you all to listen him with an open mind, open heart. Just give it this next 60 minutes for you, for your transformation. And then with that great pleasure and warm applause, I would invite C.A. Mudit Bansali to join us. But before that,
I will be failing in my duty if I do not felicitate him to be with us here. So I request my brother Abhay Bora and Manoj Jain to be come forward and felicitate Modi Ji Mansari. है वो नकली नशा कि जिससे तन का निकले दम, एक्सपीरियंस द रियल हाई, आंदोलन लाए हम। In this small introduction, Modi ji, I leave it to you for next 60-65 minutes, which we wanted to take out. Thank you so much. Thank you. So I'm very happy to see chartered accountants or fellow chartered accountant, or I can say the future chartered accountant. और जब मैं CA के बीच में कोई सेशन लेता हूँ ना तो मुझे बहुत मजा आता है. So are you comfortable with English, Hindi, or only English, or only Hindi, या both? Both are comfortable ना? Sure. So भी जैसे सुहास अंकल ने बोला है कि you have to forget about whether you have GST audit, रिटर्न फाइल करने हैं. देखो क्लाइंट का रिटर्न होगा तो होगा. क्लाइंट का रिटर्न है ना, तो टेंशन आपको नहीं लेना है. किसका रिटर्न है? क्लाइंट का रिटर्न है ना. सो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको तो जब टेंशन लेना है कि जब आपने उनको ओटीपी भेजा और ओटीपी नहीं भेज रहे, क्योंकि आपका वापस काम डबल हो जाएगा. क्योंकि ओटीपी की एक समय होती है टिल सेकेंड्स और मे बी मैक्स 5 मिनट. वो ओटीपी नहीं आया तो आपको वापस से जनरेट करना है. तब वही एक मौका है जहां पे आपको टेंशन लेना है. उसके बाद उसके पहले कभी भी आपको कोई टेंशन लेना नहीं है कि जीएसटी रिटर्न फाइल हुआ नहीं हुआ, वो क्लाइंट की जिम्मेदारी. करेक्ट. सो भी आज कोई टेंशन नहीं है. पक्का? श्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आशा जी एंड तेजपाल जी, एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड एंड वेरी proud to see the Jain community how they are contributing. I've been known that they are one of the good family in Pune, and the time they spend for this kind of activity is phenomenal. So you should be grateful for the fact that a generation who has seen 3 generation, correct? आपने 3 जनरेशन, एक खुद की जनरेशन, एक अपने बच्चों की जनरेशन, अभी आने वाले एक पोता पोती की जनरेशन आप देखने वाले हो. 3 generation they have seen, and they have seen the transformation of those generation, and they see the value which need to be transferred to the new generation. They understood that what kind of values which need to be transferred to the new generation which is coming up. So very round of applause for both of them for taking so much amount of time and just thinking and implementing certain things which to be done. और जो सुहास अंकल ने आज जो इंट्रोडक्शन दिया है, मुझे आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है. आई डोंट नो वेयर डिड यू फाइंड यू वाला सर, ये बताना पड़ेगा आपको. ये आपको उन्होंने बताया है? तो ये आपने ढूंढा कैसे यू कि मैंने ये यू बनाया है? ये कहाँ से, मतलब मैंने कोई प्रेजेंटेशन में भी डालता नहीं हूँ मैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग. So the kind of introduction he gave and the kind of point he brought in was phenomenal, and I'm truly flattered by the fact. तो पहले तो आपके बारे में बहुत सुनता था, अब साक्षात सुनने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा. So thank you so much from the bottom of my heart for such a lovely introduction. And now for all this audience who have gathered this Saturday morning, there's something for you. जैसे अंकल ने बोला, different perspective. That's it. कोई चीज सब वैसी रहेगी. आप हो, क्लाइंट भी वैसे ही रहेंगे. आप घर पे जाओगे तो आपकी वाइफ भी वही रहेगी, बच्चे भी वही रहेंगे. कुछ भी चेंज नहीं होने वाला आपकी लाइफ में. सिर्फ एक चीज चेंज होगी, इफ यू विश टू डू इट. ओके, इफ यू विश टू डू इट, द ओनली चेंज विल हैपन इज योर पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट लाइफ. दैट्स इट. नथिंग विल चेंज एट ऑल. आपका बैंक बैलेंस जो अभी जितना है, घर पे जाओगे तो भी उतना ही होगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द ओनली थिंग विल चेंज इज योर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. दैट्स इट. मेरा काम आज वही है. ओके. आज मॉर्निंग में जब मैं उठा ना, तो मेरे को ना मेरे मित्र इन्होंने फोन किया 6:30 को. मैं सोया हुआ था. 6:30 को कॉल आया कि क्या कर रहे हो. मतलब यार बट ऑब्वियसली सो रहा हूँ. तो उन्होंने बोला उठ के आओ, मैं आपको पुणे घुमा के लेके आता हूँ. सो वी वेंट टू टेकड़ी, और टेकड़ी पे मैं ऐसे ही एक पर्टिकुलर माउंटेन पे ऊपर जाके खड़ा हो गया. ठीक है.
अब मैं दो सिनेरियोज आपको बताता हूँ कि कल जब मैं पूना ट्रेवल कर रहा था वो सिचुएशन, और जब आज मॉर्निंग में मैं ये टेकड़ी के ऊपर खड़ा था तब क्या हो रहा था। तो जब मैं कल पूना में ट्रेवल कर रहा था, पूना में कितना टाइम लगता है आपको? 2 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, 45 मिनट्स. So yesterday I took around to travel 9 kilometers. It took me around 1 hour 30-40 minutes. Okay, and I was really pissed off. I was really pissed off कि यार ये क्या ट्रैफिक है पुणे का. I used to think कि मुंबई बैंगलोर इतना ट्रैफिक होता है, लेकिन पुणे में इतना ट्रैफिक है. I was really pissed off and I thought my 1 hour 30 minutes has got wasted. और जब मैं मॉर्निंग में ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने पूना को देखा. वाओ, क्या पूना दिख रहा है. वाओ, इट्स फैंटास्टिक. क्या सीनिक व्यू है, क्या माउंटेन्स है, क्या लेक है. द सिचुएशन वाज सेम. कल जब मैं पूना के अंदर था, आई वाज वेरी chaotic. पूना के अंदर था, आई वाज वेरी chaotic. आई वाज लुकिंग पूना फ्रॉम ओनली different perspective, and I found myself very chaotic. The situation is, the moment I went, I did a holistic view. I changed my view, and I had a bird. When we say bird's eye view, I have a holistic view of Pune. My thought was changed. तभी भी ट्रैफिक तो थी, चलो मॉर्निंग में कम होगी, बट माय थॉट प्रोसेस डिफरेंट, चेंज लाइक ड्रास्टिकली. तो मैंने क्या देखा कि चीज तो वही है, बट मेरा देखने का जब नजरिया आपका चेंज होता है, व्हेन यू सी फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स, you get the different results, you get different perspective wherein you can take decision or you can choose something which is more positive in a way. You got this? So ये तो मैंने एक live example share करा which you can correlate in terms of whatever you are doing in your life. The moment you change your perspective, the situation will change. Spending time with kids and working out. How about you? Coming to office, yes. कमिंग टू ऑफिस मुझे तो नहीं मिलती भाई. क्या करते हो ऐसा ऑफिस में? योर एडवाइजर. फैंटास्टिक. Training for a professional competition. तो उसके लिए जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ एवरीडे. तो उसमें किक क्या मिलती है? मतलब वो तो ठीक है कर रहा हूँ, जाना पड़ता है, क्या किक मिलती है? व्हाट डू यू गेट इन दैट? तो इट्स अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन. आई एम ट्रेनिंग फॉर हाइरॉक्स. तो हर दिन जब मैं मेरे टारगेट्स Okay. करता हूँ, उसका या मैं रन को जाता हूँ, एवरीडे जो मेरा पीआर ब्रेक होता है, तो हाथ सेकंड जो कम होता है उससे जो किक मिलती है वो सिर्फ मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ. वैसा एक्सप्लेन करके. वेरी नाइस. एंड एनीवन एल्स? किसको और किस चीज से किक मिलती है? आपको किस किक मिलती है डेली? नहीं मिलती, स्पार्क नहीं है. एनीवन हियर? नो. किसी ने पीछे रेज हैंड किया था कि किक मिलती है? नहीं मिलती है. किक चाहिए, कितने लोगों ने कहा था? पीछे बोला था ना किसी ने कि मुझे किक चाहिए. So those who have said that they, so like someone said when she goes to the office, she's the advisor, तो उनको एक किक मिलता है. इन्होंने कहा कि मैं ट्रेन करता हूं लोगों को तो एक किक मिलता है. So what do they get? Because they are doing something what they love. Okay. Now my next question is, आप कितने लोग सीए कर रहे हैं या सीए है? सारे सीए कर रहे हैं ना? तो मुझे एक खाली रेज हैंड करो जिन्होंने सीए जबरदस्ती कर रहे हैं, वो हाथ खड़े कर लो. जबरदस्ती कौन कर रहा है सीए? कि मम्मी पापा ने भेज दिया कि बेटा तेरे को सीए करना ही पड़ेगा, मैं तो नहीं कर पाया पर तुझे करना पड़ेगा. ऐसा कोई है? नो वन. सो एवरीवन ओवर हियर इज वॉलंटरीली डूइंग सीए. ठीक है, तो फर्स्ट अपना टिक यस हो गया. सेकंड, जिन्होंने भी सुहास अंकल के यहाँ ज्वाइन किया, किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन किया है क्या? कि भेज दिया, कोई फॉर्म नहीं मिल रही तो यहाँ तो चले जाते हैं. ऑल हैव कम वॉलंटरीली. करेक्ट. So the thing what you are doing is you doing because you have selected that or you have chosen that particular path. Now the format which you are working again that has been selected by you. Correct? तो फिर आपको किक क्यों नहीं मिल रही है? Why do you love cricket? Stress free. एनर्जी मिलती है. आप क्रिकेट आपको पसंद है, किसी की हॉबी होगा, किसी को बैटिंग करना पसंद है, तो वो जब सिक्स मारता है उसको लगता है कि यस आई हैव डन समथिंग एंड दैट मेक्स यू हैप्पी. करेक्ट. किसी को यहाँ पे डांस पसंद होगा, है? ओके, व्हेन यू डांस यू आर नॉट स्ट्रेस बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू लव.
तो जब मैंने पूछा कि आपने सीए करा हुआ है, आपने खुद की इच्छा से किया हुआ है, करेक्ट, you have all enrolled for chartered accountancy course out of will, that you want to do it and make yourself proud, because being a chartered accountant will make yourself proud and your parents feel proud. Second, you have joined Suhas uncle because you know that you will get lot of learning from him. That is the reason you have joined. अब ये दोनों चीज आपने आपकी सहमति से किया हुआ है, then why you are not loving it? Because you are thinking that it is as a work. आप उसको क्या सोच रहे हो कि ये मुझे काम जाना है, 9 बजे पहुंचना है ऑफिस में, तो लेट अगर गए तो सैलरी कटेगी, कटती है अपने यहाँ पे सैलरी. सो यू आर टेकिंग दिस थिंग एज अ वर्क. इट इज नॉट अ वर्क, इट इज एन एक्सपीरियंस. यू कैन कोरिलेट द सेम थिंग विद द क्रिकेट. आप अगर डेली ऑफिस जाने को अगर आप एंजॉयमेंट लोगे, कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगा. The moment you will take this as an experience instead of taking it as a work, the entire thought process of coming to work will change. When I was doing my articleship, I was fortunate that I got 3 years of articleship. आपको तो 2 साल है अभी, तो आपके articleship में मजा ही नहीं है, to be very honest. Articleship तो हमने की है 3 साल. When we used to get out of the office, we used to feel कि यार कल कब वापस ऑफिस आएंगे, because the kind of people around us and the kind of discussion we used to have amongst our team members was phenomenal, because हमने कभी वो वर्क सोचा ही नहीं. सुहास अंकल के यहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉई है? एम्प्लॉई, नॉट आर्टिकल्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन. अच्छा हाँ, वो तो पता ही नहीं लोगों को. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड एम्प्लॉई? कोई आर्टिकल है यहाँ पे? खड़ा हो जाओ प्लीज. एक जन कोई तो खड़े हो जाओ. टेक दिस अपॉर्चुनिटीज. पीपल से कि सीए को बोलना नहीं आता है, मैं हमेशा उनको रॉन्ग प्रूव करता हूँ. So can you tell me, anyone can tell me difference between an article and an employee? Fast. And the difference between an article and an employee? My article is for learning. Generally works for money. ये आपने बोला, correct, because you have that different perspective. तो वही articles नहीं समझते कि जब employee आता है, they come for the money, and in the process of doing, so they'll always focus on the work, because उनको पता है कि वो काम कंप्लीट करेंगे तो उनको अप्रेजल मिलेगा तो और पैसा मिलेगा. बट यू एज एन आर्टिकल, यू हैव कम टू लर्न. जब लर्निंग होती है ना, तो उसमें टाइम नहीं देखा जाता है. हम क्या करते हैं, टाइम देखते हैं कि 9 बज गए, हम आए, जैसे घड़ी में 6 बजा, अरे यार निकलना है. करते हैं कि नहीं हम लोग? वी डू. अरे हो ही नहीं सकता है, नहीं करते हो. मेरे टाइम में होता तो मैं सोचता कि हाँ चलो है ऐसे कोई लोग. बट आज की जनरेशन, आई एम बेटिंग यू दैट नो वन सीज के कितना लर्निंग मिल रहा है. यू ऑलवेज सी द टाइम. द मोमेंट इट इज 6 o'clock और 7 o'clock, यू विल थिंक दैट आई हैव टू गो. और 4 जन निकल गए तो और 2 लोगों के साथ मैं भी जाऊं क्या बाहर, काम हो गया. देन द प्रॉब्लम इज दैट यू सी दिस एज अ वर्क. आपकी लैंग्वेज में क्या आ रहा है? सर काम हो गया. नो. नाउ टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव एंड यू शुड से कि सर मेरा लर्निंग हो गया, और कुछ है क्या लर्निंग के लिए. Now when you go for the articles, I take lot of interviews of the articles. They ask me, sir आपके पास क्लाइंट कैसे हैं, क्लाइंट क्या है. So my reverse question is, how does that matter कि मेरे पास क्लाइंट कौन से, उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा. For example, I have MRF की सब, let's take an example, मेरे पास listed company की ऑडिट है MRF. Now you as an article when you go, और मैंने आपको सिर्फ वाउचिंग दी. क्या वाउचिंग दी? कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको सिर्फ डेटा फिल करना है. तो उससे कुछ इंपैक्ट हुआ क्या? मेरा एमआरएफ क्लाइंट होने से आपको क्या सीखने मिला, उससे इंपैक्ट हुआ? द क्वेश्चन यू शुड आस्क इज, सर मुझे सीखने क्या मिलेगा? व्हेन आई एम जॉइनिंग योर फर्म, व्हाट वुड आई गेट टू लर्न इन द प्रोसेस ऑफ माय आर्टिकलशिप? सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड एन एम्प्लॉय. आर्टिकल आर हियर टू लर्न, एंड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दे विल अर्न. तो ठीक है वो, बिकॉज ओनली इट इज अ स्टाइपेंड पार्ट. And in the process of learning, you will enhance your knowledge. The moment you become a chartered accountant, it will be assumed by the society कि आपको सब कुछ आता है. आपके पेरेंट्स बोलेंगे यार मेरा इनकम टैक्स में ये इशू आ रहा है, ये भी देख ले. जीएसटी में ये इशू है, ये भी देख ले. वो नहीं आ रहा है, ये भी कर ले. स्टार्टअप को फंडिंग करनी, वो भी कर ले. Because once you become a chartered accountant, there is an underlying presumption in the society that you should know everything. Correct? So आपको क्या करना है, जब आर्टिकलशिप आप 2 साल की करते हो, you need to ensure that you get the holistic learning knowledge instead of working on few of the assignments.
वो फ्लेम पॉइंट नाम के पीछे मत जाओ कि यार मैं तो रांका ज्वेलर्स में काम करके आया। अरे आपने रांका ज्वेलर्स में जाके काम क्या सीखा, उनके बिजनेस को समझा क्या कि बिजनेस में कैसे होता है, हाउ डज दिस प्रॉफिटेबिलिटी कम्स, व्हाट इज दी 3% जीएसटी किस पे लगता है, जो ये डिडक्शन करते हैं उनके वेरियस मैकेनिज्म्स होते हैं कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, आपने वो सीखा क्या। जब आप वो नहीं सीखोगे तो वो क्लाइंट की ऑडिट कैसे कर पाओगे। टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस यू विल नॉट अंडरस्टैंड द ऑडिट। हम ऑडिट में करते क्या है, वी गो जस्ट चेक व्हाट द अदर पर्सन हैज डन व्हिच विल बी नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर 3 इयर्स, which will be not required after 3 years। लगता है ना डर कि एआई आ गया है, किसको सच्ची सच्ची डर लगता है कि एआई आके अपना काम चला जाएगा। बी ऑनेस्ट, एक डर होता है कि नहीं कि एआई ने इतना सारा काम ऑटोमेट हो रहा है, in next 5 years probably chartered accountants will not be required, will not be required, I have not completed my statement, डरो मत, will not be required for certain tasks, but chartered accountant will always be required for higher work। डर लगता है कितने लोगों को, नहीं लगता है, थोड़ा लगता है ना। मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि लोग बोल रहे एआई एआई एवरीथिंग इज गेटिंग ऑटोमेटेड, समवेयर इवन आवर वर्क विल गो। ट्रैवल करता हूँ ना, मैं बहुत सोचता हूँ। मैंने बोला एआई का डेफिनेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। मैंने बोला आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना सकते हो बट अपना इंटेलिजेंट नहीं बना सकते हो। सो फॉर मी एआई इज अपना इंटेलिजेंस। You need to ensure that how you use अपना intelligence in your business, your profession, or whatever things you are doing. So आपको आर्टिकल्स के लिए ये खास तौर पे है, आपका अभी आज से पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज कर लो कि जब मैं काम पे जा रहा हूँ या जब मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, that means I am going there to learn. What are you going there? You're going there to learn, and you're not going there to work. इसी के लिए क्यों होता है कि जब आप कोई मिस्टेक भी करते हो ना, आपको इतना चिल्लाते नहीं है क्योंकि हम भी अज्यूम करते हैं कि आपको सिखा रहे हैं। लर्निंग, यू आर नॉट गोइंग देयर फॉर द वर्क। वो वर्क के प्रोसेस में आपको क्या सीखने मिल रहा है वो आपको ध्यान रखना है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। आप भले अगर फिक्स असेट्स का असाइनमेंट कर रहे हो या सेल्स का देख रहे हो, उसमें आपको कितना सीखने मिल सकता है, आप कैसे सीख सकते हो, दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, you have to ensure the group which you have, like for example यहाँ पे अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो XYZ है, 100 लोगों को सारा काम तो मिलेगा नहीं। इनके पास टैक्स भी है, ऑडिट भी है, जीएसटी भी है, लिटिगेशन भी है, और 2 साल में इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग। सो हाउ डू यू लर्न? यू लर्न बाय 2 ways। हम कैसे सीखते हैं? 2 तरीके से सीखते हैं। एक खुद के एक्सपीरियंस करके, हर चीज का मैं एक्सपीरियंस लूं कि जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है, या कोई चीज कैसे करनी है। ओके, एंड आई लर्न, सेकंड इज आई लर्न फ्रॉम द अदर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यही चीज को मैं आपको कहीं और लेके जाता हूं फ्रॉम द मेन टॉपिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग्स। हमें पता है सबको कि ड्रग्स बुरा है। कितने लोगों को पता है कि ड्रग्स अच्छा है? कितने लोग मानते हैं कि अच्छा है ड्रग्स? सिगरेट, बीड़ी, व्हाटएवर वी कॉल्ड ड्रिंक्स, vape, e-cigar, cigarettes and all this, are these good for health? नहीं, वो तो उसके ऊपर लिखा ही आता है कि it is injurious to health, and we are everyone aware about the fact it is not good for our health, but still lot of our friends or even we might be consuming. Correct? करते हैं ना? नहीं करते? पक्का? कुछ तो ट्राई तो किया होगा यार, पॉसिबल ही नहीं है। पक्का? तो फिर सेशन यही बंद करके चले जाते हैं। नो वरीज। सो इफ यू आर नॉट डूइंग इट, फर्स्ट बी प्राउड ऑफ दैट एंड यू स्टे अवे फ्रॉम इट। दैट इज वन थिंग व्हाट आई वांट टू गिव अवे फॉर टुडेज सेशन, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फर्दर जनरेशन। आप तो दूर हो बट आपसे जुड़े हुए कितने लोग उससे दूर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। द सराउंडिंग विच यू हैव, that should be creating the impact. If you are able to stay away from it, that means you have done an impact in your life. How you can create that impact in the other's life, that's what for the today I am over here. तो मैंने बोला लर्निंग आप 2 तरीके से करते हो, ठीक है। Now this is for those who even if you are not into it, और अगर इसमें जाना भी नहीं, मैं उसका कारण बताता हूँ कि जैसे आपने बोला कि हम जैसे I just told you that we do learning from 2 ways. One is from the experiences of ourselves, कि मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस करा
और उससे मुझे वो चीज सीखने मिली। एक होता है कि लर्निंग फ्रॉम द अदर्स, ठीक है, जैसे तेजपाल अंकल ही केम फ्रॉम राजस्थान, उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने लर्निंग में सीखी। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने सारी चीजें खुद से ही सीखी, काफी चीजें उन्होंने अदर बिजनेसमैन से सीखी होगी कि उन्होंने ऐसा बिजनेस किया था, ऐसा लॉस हो गया, तो इनको ध्यान में है कि ये चीज मुझे भी नहीं करना चाहिए, करेक्ट। सो दैट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर्स। तो जब हम ड्रग्स में जाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है कि जिनकी लाइफ खराब हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस है जहां पे लोगों की लाइफ खराब हो जाए। आपके कहीं एग्जाम्पल में है ऐसे कि जो लोग ड्रग्स में या रेगुलर सिगरेट पीते हैं वो एक एडिक्ट बन चुके हैं, ऐसे कोई ध्यान में है? नहीं है तो सोचो कुछ ना कुछ ध्यान में आएगा। देयर आर फ्यू पीपल whom you will see that they have gone into it and the kind of life they are now living। तो हम उनसे भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर ड्रग्स अगर चखना है, ठीक है, और उसे पता है कि उससे गंदी चीज होती है, वो गंदी चीज होती है, तो उसे एक्सपीरियंस करने के लिए चखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक एन एग्जाम्पल कि अगर जो जहर होता है उसको पता है कि अपने को पता है कि जहर से मर सकता हूं, तो उसको चखने की जरूरत नहीं है, पता है कि मुझे उससे मर जाऊंगा, तो लोग उसको चखेंगे नहीं। द सेम वे व्हेन आई नो दैट द ड्रग्स आर नॉट गुड फॉर माय हेल्थ, इट इज इंजीरियस टू माय हेल्थ, दैट मींस आई शुड नॉट गेट इनटू इट। बट दिस नॉर्मल थिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड। पीपल थिंक कि ये तो एक कूलनेस है। व्हाट डू पीपल थिंक? इट इज अ कूलनेस। Now I'll tell you 4 major reason why people get into it. Even you might get into it. आप अगर आज बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आपके सब सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, आप एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे होंगे कि मैं इसमें हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ऑलरेडी इनटू इट, बट आपने अगर ट्राई भी किया होगा ना, तो उसके मेन कारण है कि आपने इसका सेवन क्यों किया। व्हाई डिड यू गेट इनटू इट? अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने टाइप के ड्रग्स होते हैं, बिकॉज कल जब भी मैं नए सेशन में जाता हूँ ना, मुझे 2 नई वैरायटी और आती है। ये तो एक प्रोडक्ट के जैसा हो गया कि मैं जब कोई नया सेशन लेता हूँ तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। इतना फास्ट तो मैंने कोई बिजनेस में नहीं देखा। नेक्स्ट सेशन लिया तो उसने बोला कि मशरूम मिलती है, DMD MD क्या बोला पता नहीं, कुछ और मिलता है। सो आई एम एनहांसिंग माय नॉलेज डे बाय डे, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट इन डिफरेंट फॉर्म। यू विल नॉट इमेजिन द फैक्ट दैट जो ये जितने भी पान पट्टी के शॉप होते हैं ना स्कूल कॉलेजेस के बाद, ताकि बच्चों को ना छोटी छोटी चॉकलेट दी जाती है। यू हैव बीन गिवन दिस स्मॉल काइंड ऑफ ड्रग इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स। दे आइडेंटिफाई कि कौन सा बच्चा परेशान है, कौन सा बच्चा स्कूल से रोते हुए आ रहा है, कौन सा बच्चे की झगड़ा हो गया, मस्ती हो गई, कौन सा बच्चा इरिटेटेड दिख रहा है। उसको लेते हैं, उसको बोलते हैं काम कर, एग्जाम का प्रेशर आ रहा है ना, कॉलेज का प्रेशर है ना, ऑफिस में काम का प्रेशर है ना, एक काम कर, इसको खा डेली, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन आप ऑफिस में बैठे हो, ठीक है, यू आर सिटिंग इन द ऑफिस, ये मेरा डेस्क है, मैं काम कर रहा हूँ, क्लाइंट का GST रिटर्न फाइल करना है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, बिकॉज वर्किंग कंप्लीट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं देखता हूँ मेरे सामने एक रोज बंदा है, जब भी उसको स्ट्रेस आता है वो सिगरेट पीने नीचे चले जाता है। तो मैंने उसको कॉपी किया कि यार नीचे जाता है, वापस आता है तो करने लग जाता है काम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, काम चालू था, मैं गया ऑफिस के नीचे, मैंने सोचा कि नीचे जाऊंगा तो स्ट्रेस हो जाएगा फ्री। मैंने एक सिगरेट पी, वापस आया, तो मेरा काम को कुछ फर्क पड़ेगा? काम तो वही है, रिटर्न तो अभी भी फाइल करना है। ऐसा नहीं ना कि मैं नीचे गया तो AA ने मेरा रिटर्न फाइल कर दिया, नहीं ना। Now the moment I was there in this situation, the work was same, GST रिटर्न फाइल करना ही था, काम का लोड था ही। मैं नीचे जाने के बाद जब वापस नीचे गया, सिगरेट पी के आया और वापस ऊपर आया, तो रिटर्न फाइल हो गया क्या ऑटोमेटिकली? नहीं हुआ ना। तो स्ट्रेस तो वही था। आपने क्या किया? आपने खाली आपके माइंड को चेंज किया, एंड दैट टू यू चेंज योर माइंड फॉर जस्ट टेम्परेरी पर्पस। सिर्फ वो शॉर्ट स्पेन के लिए आपने आपके माइंड को चेंज किया। यू थॉट दैट अ puff of a cigarette can take away your stress, but which cannot, क्योंकि काम तो वही है। So now you have to switch your mind. स्ट्रेस सबको आता है, ओके, बट यू शुड लर्न हाउ टू स्विच योर माइंड, ठीक है। बचपन में हम क्या करते थे पता है? जैसे कितने लोगों ने बोला क्रिकेट खेलते थे, वी टू प्ले क्रिकेट, वी टू एंजॉय दैट। लड़कियों ने बोला हमको डांस करने में मजा आता है। तो जब हम बड़े होते होते गए तो हमारा ये एंजॉयमेंट कम क्यों हो गया? व्हाई डिड वी रिसोर्ट टू डिफरेंट थिंग्स व्हेन वी गेट older?
क्यों हम क्रिकेट नहीं खेल सकते वापस? क्यों नीचे जाके फ्रेंड को फोन नहीं कर सकते कि चल हाँ मेरे को स्ट्रेस आ रहा है, मेरे को डिस्कस करना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्व करूँ? व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट? बिकॉज वी आर जस्ट सीइंग ऑन द फोन व्हाट पीपल्स आर डूइंग, कि लोग स्ट्रेस में होते हैं तो पार्टी करने जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, सिगरेट पीते, उससे लोगों को लगता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं. नो, दैट इज व्हाट यू सी ऑन द सोशल मीडिया. द फैक्ट इज नॉट दैट. द फैक्ट इज नॉट दैट. जो सोशल मीडिया पे लाइफ बताई जाती है उसकी 180 डिग्री होती है लाइफ एक्चुअल में. 180 डिग्री. बिकॉज सोशल मीडिया पे वही बताते हैं जो हमको बताना है. हम सोशल मीडिया पे वही बताते हैं. आप जाओ एलिवेट के प्रोग्राम का देखो, बहुत अच्छा लगेगा कि सारा चीज सिस्टमेटिक है, सारा है. दैट इज नॉट द फैक्ट. बहुत सारी चीजें हमें भी कमियां होगी, बट हमको वही बताना है जो हमको बताना है, वो हम वही पोस्ट करेंगे. सो दैट इज व्हाट द सोशल मीडिया इज. आपका एक फ्रेंड को आपने देखा कि वो रोज सिगरेट पीता है और उसका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, विच इज नॉट द केस. यू अंडरस्टैंड फर्स्ट फ्रॉम हिम कि स्ट्रेस रिलीज हुआ कि नहीं हुआ. हुआ तो भी टेम्परेरी पर्पस के लिए, जब तक वो सिगरेट नीचे पी के आया तब तक था. बट द मोमेंट ही केम इन द ऑफिस एंड ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज लैपटॉप एंड डूइंग हिज वर्क, द सिचुएशन वाज द सेम. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील स्ट्रेस, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, टेक 3 डीप ब्रेथ, लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग. ठीक है? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? हाँ, स्ट्रेस में आ गए. सो सॉन्ग्स सुनने के लिए भी स्ट्रेस में नहीं आना है. नहीं आता है तो लिख के रखो कि ये मेरे 3 फेवरेट सॉन्ग है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो, यू फील स्ट्रेसफुल, जीएसटी रिटर्न फाइल करने में टेंशन आ रहा है, तो फटाफट एक ईयरफोन लगाओ और एक सॉन्ग प्ले कर लो. हाँ, अलाउड नहीं है, फोन अलाउड नहीं है. क्या बात कर रहे हो? ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है. अच्छा, ऑफिस में फोन अलाउड, लॉकर सिस्टम है, ईयरपॉड्स अलाउड नहीं है. अच्छा, चेकिंग होती है. ठीक है, रूल्स में. ये चालू करवाना है क्या? चालू करवाना है ये? अच्छा, ठीक है. So coming back to the point, see, now just imagine you are enjoying this moment. Why you are enjoying? Because in your mind you have said that today I am here to learn something. The moment you, आप अगर जितने लोग हैं ना उसमें से 1-2 जन अभी भी सोच रहे होंगे यार रिटर्न फाइल करना बाकी है, तो वो मोमेंट में नहीं जी रहा, वो अभी ये मोमेंट में भी हंसा नहीं. बट जितने भी लोग यहाँ पे हंसे, उनके पास तो स्ट्रेस है ही ना. वहां पे ऑफिस जाओगे तो वो स्ट्रेस तो है ही ना. But the moment you change your perspective and you came into a different surrounding and scenario, your stress gone. So this you have to do in bits and pieces. Stress रहेगा हमेशा life में. That is okay. That is part and parcel of life. But how you switch on and switch off from that particular thing, that is in your hand. You can choose that. Correct? आपने वॉलेंटरीली सोचा कि आज जाना है, अंकल ने बुलाया, बरोबर है, बट आपने एक माइंड भी सेट किया आपका कि यस मैं आज जाऊंगा, मुझे कुछ सीखने मिलेगा. यू कैलिब्रेटेड योर माइंड कि यस आई विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. बिकॉज ऑफ दैट यू आर टुडे एंजॉयिंग दिस सेशन. आई होप सो. ठीक है? सो कमिंग बैक, नई नई चीजें पता चलती है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है. और दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई पीपल गेट इनटू इट, और यू माइट गेट इनटू इट. आई डोंट नो. ये अभी तो कुछ स्ट्रेस नहीं है, आर्टिकलशिप कर रहे हो, बट जब सीए बन जाओगे तो बहुत स्ट्रेस आएगा. शादी का स्ट्रेस आएगा, पेरेंट्स बोलेंगे भाई अभी सीए बन गया, अभी और क्या करना है. किसी को होगा कि हायर स्टडीज करनी है, अब सीए बन गया, सीएफए भी करना है. कोई बोले सीएफए नहीं, एमबीए करना है. तो आपके गोल्स जो है ना, गोल पोस्ट आगे आगे जाता रहेगा. सीए बन, फिर एमबीए बन गया, फिर कॉर्पोरेट में जो है, कॉर्पोरेट में जाने के बाद और पैसे कमाने हैं. तो ये सारे गोल पोस्ट तो आगे जाते रहेंगे, तो स्ट्रेस हमेशा आएगा. तो सबसे बड़ा रीजन, और आपके फ्रेंड्स भी चेंज होते जाएंगे. आज आपके जो फ्रेंड्स है वो आर्टिकलशिप में कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई सीए बन गया, कोई मुंबई चला गया, कोई बैंगलोर चला गया, कोई कहीं और चला गया. सो योर सराउंडिंग विल कीप ऑन चेंजिंग. ओके, नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सराउंडिंग यू वांट. योर सराउंडिंग मेक्स ह्यूज इम्पैक्ट ऑन व्हाट यू आर टुडे. आज अगर मैं इतना बोल रहा हूँ ना, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू वन ऑफ माय प्रोफेसर हु चेंज माय लाइफ इन 9th स्टैंडर्ड. मैं 9th तक कैसा था पता है? वो लास्ट बेंच पे बैठता था और ऐसे, I could not even see in the eyes of the person who is talking to me. I was, आज 31st है, क्या फर्क पड़ता है यार, 31st तो पूरी दुनिया करती है.
31st तो पूरी दुनिया पीती है तो पीना ही पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर यू कैन नॉट से नो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। डर लगता है ना, चलो फॉरगेट अबाउट कि हम ड्रग्स और ड्रिंक्स के लिए फ्रेंड्स को नो नहीं बोलते, बट ऐसा कोई होता है सिचुएशन जहां पे हम दोस्त को ना नहीं बोलते, कि कोई प्लान बना दिया, आपकी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है बट वो बोल रहे हैं तो इसके लिए मेरे को जाना पड़ रहा है, होता है ऐसा? क्यों आप उसको अग्री करते हो? Why do you agree on that part when you yourself don't want to go? Why do you say yes then? क्यों हाँ बोलते हो? हाँ, वो गन पॉइंट पे तो बोलता नहीं, कहीं ना कहीं आप सोचते हो, वो नहीं सोचते हैं। आप सोचते हो कि मेरी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी, उसको ना बोलूंगी तो, ना बोलूंगा तो, आप सोच रहे हो, वो नहीं सोच रहे। हाँ, बाय द वे, आपने ना बोला होता था वो शायद रिस्पेक्ट भी करता है कि उसको नहीं चलना तो नहीं चलना है, बट इफ यू आर सेइंग नो एंड स्टिल he or she is insisting you, that means he's not your friend, he's not your friend, he or she is not your friend। तो सबसे बड़ा मेजर रीजन है योर पीयर प्रेशर। आपको लाइफ में बहुत लोग ऐसे प्रेशराइज करेंगे, एक बार पी लेना, क्या फर्क पड़ता है यार, टेस्ट करके रख देना, नहीं समझा तो रख देना, बट क्यों करना जब आपको पता है ना कि खराब है, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जब मुझे पता है कि यहां से नीचे खाई है तो मैं एक स्टेप क्यों बढ़ाऊं? When I know there's a steep, I should not go there। कि मेरे को एक्सपीरियंस करना, मैं करूँ क्या? Will you experience that? कि मेरे पास पैराशूट नहीं है फिर भी ट्राई करता हूँ, जंप कर ले, चलो कर लेते हैं, करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? एक्सपीरियंस करते हैं ना, क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? गिरूंगा तो मरूंगा थोड़ी ना, गिरूंगा ना सिर्फ, मरूंगा थोड़ी ना। बट यू नो दैट लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन द मोमेंट यू फेल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर माउंटेन। From the same way, you don't know at what point in time, if you get into drinks, smoking, drugs, या कोई भी ऐसा एडिक्शन जो आपके लाइफ को एनहांस नहीं कर रहा है, उसको डिटोरिएट कर रहा है, you will have a huge impact in your life। So, peer pressure जब भी आपको आएगा लाइफ में, उसमें आपको ध्यान रखना है, उनको नो बोलना है। क्या बोलना है? नो। नो मीन्स ए क्लियर नो। अब उसमें आपको एक अच्छा सा एग्जांपल शेयर करता हूं कि नो, जब आप खुद नो बोलोगे तो उससे इंपैक्ट क्या होगा। ये जानते हैं इनको? कौन है ये? कौन है ये? मोदी जी है। अब ध्यान से देखना, आपने शायद देखा नहीं होगा कि इन्होंने यहाँ पे एक ग्लास उठाया और रख दिया। ये क्या होता है, फ्रांस में एक रिचुअल होती है जो हमारे यहाँ पे भी होती है, थोड़ी थोड़ी, हम पार्टीज में जाते हैं तो फ्रांस में एक रिचुअल होती है कि वहां पे रोस्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? टोस्ट बोलते हैं उसको, टोस्ट करते हैं एंड दे रेज अ ग्लास, और उसमें क्या होता है, शैंपेन या वाइन होती है। ओके, देयर इज शैंपेन और वाइन इनटू इट एंड दे यूज्ड टू ड्रिंक दैट। कोई भी मीटिंग होगी या जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है, सो दैट्स अ रिचुअल यू कैन से। तो अपने यहाँ पे भी कुछ होता होगा ना, कोई पार्टीज में जाते हैं, वहां पे ड्रिंक्स रखी है तो पीना तो ही है, करेक्ट, पीना तो ही है क्योंकि वो है, वहां पे रखी है तो पीना ही पड़ेगा ना। सो मोदी जी जब गए वहां पे, द मोमेंट ही लिफ्टेड द ग्लास, हिज कॉन्शियस सेड दैट दैट्स नॉट माय ग्लास। व्हाट डिड ही सेड? द मोमेंट ही लिफ्टेड हिज ग्लास, ही सेड दैट्स नॉट माय, ही सेड दैट्स नॉट माय ग्लास, और उन्होंने वो ग्लास को नीचे रख दी। उनका कॉन्शियस ने उनको बोला कि दिस इज नॉट माय कल्चर, दिस इज नॉट व्हाट माय अपब्रिंगिंग इज, दिस इज नॉट व्हाट आई सपोज्ड टू डू, बिकॉज आई एम नेवर इनटू इट, और मैं ये विलफुली कर नहीं रहा हूं। तो इन्होंने जैसे ग्लास तो उठाई, उसको ऑनर किया, रिस्पेक्ट किया, बट पिया नहीं, उसको नीचे रख दिया, एंड ही सेड दैट दैट्स नॉट माय ग्लास। ओके, अब उससे हुआ क्या? ही रिस्पेक्टेड हिज कल्चर, ही वाज knowing what his culture is, seeing that culture. Next time he went to US to face the biggest economy of this country, this world, जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे, वहां पे भी ये रिचुअल था टोस्ट करने का, और उनको पता था कि मोदी जी आ रहे हैं, तो उन्होंने ग्लास में वाइन के बदले क्या रखा? पानी। क्या रखा? क्या रखा? They put water into it, they did not put any alcohol, they put non-alcoholic, either water or maybe any drink which is non-alcoholic drink, because they knew that Modi ji is not drinking. So just imagine if he said no to, if he can say no to the biggest economy of this world, why can't you say no to your friends?
Why do you get lured by the fact कि उसने 5 बार बोला कि लेना ही पड़ेगा तो लेना ही है? No, my culture is different, my upbringing is bit different. जो संस्कार से आता हूँ वो डिफरेंट है. तो क्यों हम उसके संस्कार अपने संस्कारों पे अड़े नहीं रहते? क्यों हम थोड़े से स्लिप हो जाते हैं कि यार चलता है, एक बार तो ट्राई कर लेते हैं? When he can say no, why can't you? So जोर से बोलना. When someone tells you to lift a glass, you should say that's not my. That's it, third class. It's not that class. It is the third class wherein you are getting into all these things, which is not your culture. We are adopting culture of West in a very haphazard way. और to your understanding, आप रिसर्च कर लेना, आज गूगल करना या AI कर लेना सर्च में. US में consumption of alcohol has reduced drastically. US में या वेस्टर्न कंट्रीज में कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, और यहाँ पे अपना कंजम्पशन बढ़ रहा है. हम यूएस को कॉपी कर रहे हैं और वो तो छोड़ चुके हैं. हम लोगों को जो कॉपी कर रहे हैं वो तो खुद छोड़ चुके हैं और हमको बोल रहे कि आप करो. सो यू शुड डिसाइड दैट हु आर योर बेस्ट फ्रेंड, हु आर योर फ्रेंड्स हु डज दे रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू से नो, दैट मींस नो. And you should be able to tell them no without thinking कि मेरी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी. अगर फ्रेंडशिप नो बोलने से खराब हो जाती, that means वो फ्रेंडशिप ही नहीं है. So that is what you have to learn, that how you have to handle the peer pressure. तो अभी next time peer pressure आएगा तो ध्यान रहेगा, पक्का, sure. The second most reason why people get into drugs and all these substances because of curiosity. किसी ने FOMO बोला था, पता है? कितने लोगों को लगता है कोविड के बाद, हाँ कोविड के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, कोविड के बाद की लाइफ में सब एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद लोगों ने रियलाइज कर दिया कि लाइफ ऐसी है, कभी भी जा सकती है. सो हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वी शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन आवर लाइफ? कि लाइफ में एक्सपीरियंसेस करने चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड. करेक्ट, करना चाहिए ना, सारे एक्सपीरियंस करना चाहिए ना. तो जब मैंने बोला कि वहां पे वो खाई से मैं कूदू गया, तो आपने ना बोला मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर गुड, मतलब वो केविएट है, एक एक्सेप्शनल केसेस है. सो ही सेड थिंग्स विच आर गुड आई शुड एक्सपीरियंस इट. सेम वे फोमो में अगर समथिंग आई सी दैट मेनी पीपल आर डूइंग इट, आई शुड नॉट जंप इनटू इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मुझे ये करना है. हाँ ठीक है, आपको टेस्ट करना है ना, एक बार टेस्ट कर लो, बट खुद भी रियलाइज कर लोगे कुछ मजा नहीं आ रहा है. पहले तो स्मेल करके आप, अगर बियर या ऐसा कुछ अल्कोहल आप स्मेल करके आप बोलोगे यार क्या चीज है, व्हाई पीपल आर ड्रिंकिंग दैट. द रीजन व्हाई पीपल आर ड्रिंकिंग दैट इज बिकॉज मेरा बाजू वाला पी रहा है. उसको भी नहीं पता वो क्यों पी रहा है, बिकॉज उसके बाजू वाला पी रहा था. वी इंडियंस आर मियर फॉलोवर्स. एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है. सो इंडिया का बताता हूँ, इंडिया का सिचुएशन कैसा है. इंडिया में हम ब्लाइंड फॉलोवर्स है. व्हाट वी आर ब्लाइंड फॉलोवर्स. एक बार क्या हुआ, एक बंदा आया था बाहर से, ठीक है, वो गया गंगा के यहाँ पे डुबकी मारने. तो वो बहुत महंगे एलवी के जूते पहन के आया था. तो उसने बोला जूते रखूंगा. तो उसने क्या किया कि मैं जाऊंगा तो मेरे को जूते मिलेंगे नहीं. उसने क्या किया, जो वहां पे बीच था उसमें खड्डा खोदा, उसके अंदर प्रॉपर से उसका रुमाल रखा और उसके ऊपर उसके जूते रखे, और उसने फिर मिट्टी डाल के उसका थोड़ा डोम बना दिया. ऐसा पहले उसने फ्लैट रखा, बट उसने बोला फ्लैट रखूंगा तो आइडेंटिफाई कैसे होगा मेरे जूते कहाँ है. तो उसने क्या किया, थोड़ा सा ऐसा डोम टाइप बना दिया कि मेरे को दिखेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब वापस गंगा में डुबकी लगा के आऊंगा तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे मेरे जूते पड़े हैं. तो उसने वो डोम बना के वो चला गया. अब वो जब जा रहा था तो उधर से 2 लोगों ने देख लिया, वो भी कहीं बाहर से आए हुए थे. उनको लगा ये रिचुअल है कि गंगा में आरती लगाने से पहले आपको शिवलिंग बनाना है और वहां पे जाना है. वो 2 लोगों ने बना दिया साइड में आजू बाजू में, और 4 लोगों ने देखा तो 4 लोगों ने और बना दिया, और 5 लोगों ने देखा तो और लोगों ने बना दिया. ऐसे करके 100 तो डोम बना दिए सबने. अब वो भाई साहब जो फर्स्ट टाइम गया तो वो आगे गया, डुबकी उबकी लगाई, बोले बहुत अच्छा हो गया. आया वापस, बोला मेरे जूते कहाँ है. अब तो ये तो सारे डोम बन गए. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अस, दैट वी फॉलो अदर्स ब्लाइंडली. We follow others blindly. We don't understand the root cause of that. We don't understand कि मेरे स्ट्रेस का रूट कॉज क्या है. We don't understand कि मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को इरिटेशन हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है. और वही पेरेंट्स करते हैं. हमारे पेरेंट्स हमको पूछते थे, टीचर ने कंप्लेंट की तो पहले चाटा हमको पड़ता था, क्योंकि रूट कॉज पे नहीं जाते थे प्रॉब्लम क्या है. Now parents also need to understand. You should
that what is the root cause why the child is getting into drinks. Is it because of peer pressure? Is it because of the stress at the family? Is it because of the way he should look, flamboyant in his society or social status? So you should identify the root cause. So we have identified these are the root causes which you need to understand कि ये root cause के कारण आप उसमें घुस सकते हो, और हर root cause का हमने एक solution दिया है. जैसे मैंने peer pressure का बताया कि कैसे अगर मोदी जी ना बोल सकते तो even you can say no to your friends, and if you are saying no and he is respecting that, that means you are true friend. Same way out of FOMO, जैसे मैंने बताया आपको ये एग्जांपल कि कैसे हम खाली लोगों को कॉपी करने में जाते हैं. Fear how I can add value into ecosystem, वहां पे होना चाहिए कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. ये सोसाइटी तो ऐसे ही चलती रहेगी. सोसाइटी क्या है कि ये चार लोगों ने कुछ नॉर्म डिसाइड किया, वही सोसाइटी बन गई. अब अगर वही चार चीज कुछ पॉजिटिव चीज को लाएंगे तो वो नॉर्म बन जाएगा. नॉर्म इज व्हाट द पीपल ऑफ दिस सोसाइटी डिसाइड. वी एज अ पीपल नीड टू चेंज व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट मैसेज वी वांट टू पुट इन द सोसाइटी. पहले पता है पुराने लोग यहाँ पे काफी है, जब हम किसी से 1,00,000-2,00,000 रुपया लेते थे और नहीं दे पाते तो हमको एक शर्म आती थी, एक डर होता था मार्केट में कि यार ये फलान चंद जी का 1,00,000 रुपया पेंडिंग है. होता था ना, डर होता था ये ऐसा कि यार मैं इसका पैसा नहीं दे रहा हूँ, कल को मार्केट में पता चलेगा कि ये इनका पैसा बाकी है तो मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, हवा अच्छी नहीं जाएगी. आज क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ये 50 करोड़ में उड़े हुए हैं, वो 100 करोड़ में उड़े हुए हैं, ये 500 करोड़ में है, ये 3 करोड़ में है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है. बिकॉज हमने सोसाइटी के नॉर्म को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया है. हमने सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस ला दिया है कि डिफॉल्ट करना इज ओके, डिफॉल्ट करना इज ओके. तो समवेयर द सोसाइटी जो है, दैट इज वी एज अ पीपल शुड चेंज द नॉर्म्स अगेन. We need to think on the norms what we want to create for the future generation. Future generation will do what we have accepted. If we have accepted the Western culture कि घर पे आजकल तो सब चलता है, then people will also start accepting that. अगर हमने थोड़ी वो boundary रखी, yes, we need to change where the world is going, but change not at the cost of our culture. Change not at the cost of the tradition we have. Change not at the cost of the value system what Indian community has. Change not at the cost of our ecosystem. Change हो, but अपने सिनेरियोस, अपना जैनिज्म हो या अपना जो भी संस्कार आपको मिले हुए हो, उनको आप स्ट्रॉन्ग रखो. उनको आप अगर स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, आप लाइफ में कभी फिसलोगे नहीं. ओके, सो आउट ऑफ फोमो यू डोंट डू इट. सम पीपल डू इट ओनली फॉर द एंजॉयमेंट. बोले नहीं, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे को कोई एडिक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ मैं जब 31 को जब जाता हूँ पूरी दुनिया को देखता हूँ कर रहे हैं तो मुझे भी एक एंजॉयमेंट लगता है कि मैं भी करना चाहिए, है ना. तो बहुत लोग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, करेक्ट. सो आई एम सेइंग इवन इफ यू थिंक दैट इज एन एंजॉयमेंट, ट्राई टू डू इट विदाउट दैट. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई गो टू द पार्टीज, आई आल्सो लव पार्टीज. तो मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंजॉय करने के लिए जाता हूँ पार्टी में. बट आई लाइक डांसिंग फॉर एग्जाम्पल, सो आई डांस लाइक एनीथिंग. मेरे फ्रेंड्स कितनी बार पूछते कि तूने पिया है क्या, बोले नहीं, तो तू इतना कैसे एंजॉय कर रहा है. सो दैट्स द वे आई शो देम दैट हाउ आई एंजॉय. सो व्हेन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द पार्टी, यू डोंट फील लाइक अ डम कि मैं नहीं पी रहा हूं तो मैं सिर्फ ऐसे क्लास खड़ा रह के ऐसे खड़ा हूं और सबको देख रहा हूं. नो, यू बी इन दैट मोमेंट, यू एंजॉय व्हाट यू लव टू डू. अगर आपको डांस पसंद है तो डांस करो ना. जरूरी थोड़ी ना कि पीने के बाद ही डांस कर सकते हो. किसी ने कहा है क्या ऐसा? नो, you can enjoy that party as well. but कितने बार होते हैं ना, लोग सिर्फ ऐसे लगते हैं कि वो पानी लेने के भी डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, यार ये तो पी नहीं रहा है. तो आपको ये आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना है. यू डोंट थिंक व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग, थिंक व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. व्हेन इवन आई गो टू द पार्टी, आई स्ट्रेट अवे मैं नॉर्मल सोडा या नॉर्मल पानी रखता हूँ, इट्स ओके, एंड आई शो माई सेल्फ एज सो कॉन्फिडेंट. उसको सामने वाले को लग जाता है कि यार मैं उसके, वो कितने बार दोस्त लोग आते हैं वो ऐसे ग्लास छुपा देते हैं, और मुझे कैसे, हाय हाउ आर यू, क्या चल रहा है. ये सिचुएशन होनी चाहिए. समवन शुड फील दैट व्हाट ही और शी इज डूइंग इज नॉट करेक्ट. आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट सेइंग कि आप ड्रिंक्स करो ही मत, बट आई एम सेइंग व्हिच इज नॉट गुड, व्हाई टू गेट इनटू इट. दैट्स द ओनली पॉइंट. जब हमें पता है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है या कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, वैल्यू माइनस ही कर रही है. आप पियो ना, आप जूसेस पियो तो उससे आपको एनर्जी मिलती है. ये पीने से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है. लोग बोलते हैं कि एक अलग किक मिलती है. वो किक कितने टाइम के लिए मिल रही है? रात तक मिल रही है, सुबह तक और हालत खराब होती है.
12 बजे उठने के बाद और स्ट्रेस होता है उल्टा. So try to see what you are taking in your body, how does it impact you. जब आप इतने लोग, आज कितने लोग होंगे यहाँ पे, बहुत सोचते होंगे कि अभी आजकल फैशन चल रहा है कीटो डाइट या वीगन फूड, करेक्ट है ना, और सब वो घास फूस खाना है. When you can become conscious for the food what you take, why you are not conscious about the fact what you are drinking. हम उसमें तो बहुत सोचते हैं घी इतना नहीं खाना है, ये ऑयली है, वो वैसा है, वो ऐसा है. When you can be conscious in terms of the food, you should be conscious about what you are drinking as well, because your body consists of 70% of your body consists of liquid what you take. और जब आप जो चीज ग्रहण करोगे अपने बॉडी में डालोगे, वैसे हिसाब से आपको थॉट्स आएंगे, उस टाइप से आपके दिमाग चलेगा. ओके, सो दैट इज व्हाट यू विल ऑलवेज सी, करेक्ट. सो डोंट डू इट फॉर द एंजॉयमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. डू इट इफ यू एक्चुअली लाइक इट and you are under control. बहुत लोग हैं ये एस्केप मैकेनिज्म है. एस्केप मैकेनिज्म मतलब भागना चाहते चीजों से. जैसे इसने किया था, कॉर्पोरेट में टेंशन था, निकल जाता हूं तो शायद टेंशन दूर हो जाएगा, वो भागने की कोशिश, बिकॉज देयर वाज अ फियर कि स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत सारा काम बाकी है. So people resort to all these substances because of when you will go in your corporate life, you will face lot of challenges, many challenges. But for escaping from that, you should not resort to all these things. You should start discussing with your friends and family. What we are doing, we are not discussing with it. हम discuss नहीं करते because हम सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, पापा क्या सोचेंगे, पापा को बोलूंगा ऐसा हो गया तो पापा क्या सोचेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा है. नहीं, ऐसा नहीं है. No one will think. It is only you are assuming what the other person will think. At the same time, the other person is not thinking about you. Is not at all thinking about you. It is only the mind. In your mind, you have created certain thoughts that what the other person will think, how he will react, how she will, act. That is our thought process. The moment you start communicating, the things will be very easy way. और आपको solution automatically आपके discussion में मिल जाएगा. So start communicating instead of finding escape mechanism. Okay? Next time stress आए तो genuinely बोल दो सर को कि सर मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, ये मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इसको कैसे करें. ही विल टेल यू, एक काम करो किसी और को देते हैं. सो व्हेन आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप ना, तो मेरे पास ना वैट ऑडिट होता था कभी, तो वैट में एक फॉर्म होता था वैट ऑडिट का, जैसे जीएसटी में एक फॉर्म होता था. मुझे बहुत मजा ही नहीं आता था, स्ट्रेस छोड़ो, मजा ही नहीं आता था वो फॉर्म भरने. तो मैं आई यूज्ड टू लिटरली गो टू माय पार्टनर इन से, सर मेरे को भरने में मजा नहीं आ रहा है, सर क्या करें. एंड व्हाट डिड ही टू डू, वो बिठाते थे मुझे, वो खुद पूरा फॉर्म भरते थे और उन्होंने कंप्लीट कर दिया. अगर होता मुझे स्ट्रेस लेता मैं और फॉर्म को कुछ का कुछ भर देता, आई वुड हैव डन wrong, my action would have led to wrong results. But since I genuinely said that I am not liking it, and I got the solution. Same way, when you feel stress, discuss with your friends, with your parents, with your teachers, or with your mentors whom you think that who will not judge you. In fact, no one judge you, but you genuinely feel that they will not judge you. Discuss with them. कोई तो आपका ऐसा दोस्त होगा ना जिससे आप डिस्कस करते हो, उससे डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. Now why does people think कि ड्रग्स खाली सिर्फ बॉडी में जाता है तो बॉडी को इम्पैक्ट करता है, बट इट हैज आल्सो हैव लॉट ऑफ किल इफेक्ट्स. किल कैसे होता है कि जब अगर आप इसमें घुस जाओगे बाय चांस, अब नहीं हो फॉर एग्जांपल, बट ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको बहुत प्रेशराइज किया, अगर आप गलती से इसमें घुस गए तो उसके रिपरकशन क्या है मैं आपको वो बताता हूँ कि ना सिर्फ आपकी बॉडी को इम्पैक्ट होगा, बट आपकी फैमिली इमेज पे भी बहुत फर्क पड़ेगा. जो सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, जो फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, एवरीवन ओवर हियर इज कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली विद गुड वैल्यूज एंड गुड कल्चर. द मोमेंट यू गेट इनटू इट एंड योर पेरेंट्स कम टू नो एंड द अदर members from the society come to know that you are into this, they might feel very humiliated कि बॉस ये क्या कर रहा है. तो सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी फैमिली भी इम्पैक्ट होती है. सो एक आपका एक्शन आपके फैमिली पे कितना इम्पैक्ट कर सकता है वो देखो. सेकंड, जब हम देखते हैं कि लीगल इम्प्लीकेशन, तो ठीक है सब लीगल तो अभी होता ही है, दैट यू कैन गेट बिहाइंड द बाजू, और यहाँ तो जेल भी बाजू में है. तो गलती से भी इस चीज में मत घुसना कि जहाँ पे हमें जेल जाना पड़े. Many people try to steal money because क्या होता है कि ये ड्रग्स ना सस्ते नहीं आते, बहुत महंगे आते हैं. तो मैंने ऐसी स्कूल में लिया जहाँ पे मुझे पता चला कि कल ही एक केस डिस्कस किया था किसी ने, यू मस्ट बी अवेयर. शी सेड दैट किसी की फ्रेंड ने क्या करा, घर के
गोल्ड, मम्मी के जो गोल्ड बेच दिए और घर की एक्टिवा बेच दी जस्ट टू सप्लाई। वो ऐसे ही मस्ती मस्ती में वो घुस गई कि बोले ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद उनको पता चला कि शी कैन बिकम अ सप्लायर ऑफ द ड्रग। सो यू, हाँ खाना रेडी है। सो यू विल रियलाइज दैट व्हेन यू एज अ कंजम्पशन कैन बिकम अ सप्लायर, आपको यूज किया जाएगा, लोग आपको यूज करेंगे बिकॉज उन्होंने आपको वो टेस्ट करा दिया। अब आपको उसका रेगुलर से आदत पड़ जाएगी। जब आदत पड़ गई तो आदत तो बुरी चीज है, जब आदत पड़ गई तो आप क्या करोगे, उस चीज में बार बार उसको ट्राई करोगे लेने की। अब आप तो आज आर्टिकलशिप में कर रहे हो तो आपको 5,000 मिल रहे होंगे, 10,000 होंगे, 15,000 मिल रहे होंगे, बट आपको पता है कि अगर आदत लग गई है तो ये तो महीने का कम से कम 20-25,000 का खर्चा है। तो आप क्या करोगे, पैसे कहाँ से लाओगे, घर में चोरी करोगे, कहीं फ्रेंड को बोलोगे, कुछ और चीज करोगे। सो नाउ जस्ट इमेजिन वन सिचुएशन ऑफ योर्स इज लीडिंग टू मल्टीपल प्रॉब्लम। टू एंड वन प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि सोल्यूशन जो स्ट्रेस है उसको एंड करने का तरीका आपने गलत चूज किया, उसकी वजह से आपने कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना दी, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट फॉर योर फैमिली टू। तो आपको ध्यान रखना है कि जब स्ट्रेस हो तो मुझे करना क्या है। क्या करना है आपको, क्या करना है, डिस्कस करना है। किसके साथ, मेंटर, फ्रेंड, फैमिली और एनीवन हु यू फील दैट यू कैन, दे कैन लिसन टू यू। So since you said that you are away from it, now you have to become the brand ambassador for this, that yes, I will be away from it and I will ensure that my parents, my family members, my friends are also away from it. At least जो हमारा सर्कल हमने अगर उसको क्लीन कर दिया, that is more than enough. हमारे के आचार्य जी तुलसी बोलते थे, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमको पहले खुद को सुधारना है, हमको दूसरे का नहीं करना है। पहले अगर मुझे पता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई नो आई एम अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, सो व्हाट डिड आई डू, आई वेंट टू द नेक्स्ट स्टेप। जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, पीते थे, बहुत सारे फ्रेंड्स पीते थे, मुझे भी फोर्स करते थे, बट आई नेवर एक्सेप्टेड देयर रिक्वेस्ट। सो मैं जब भी जाता हूँ, अब एक रूल है, 5 साल पहले तक तो क्या होता था कि मैं जब भी जाता था कहाँ पे भी, तो ये लोग ड्रिंक्स नहीं करते थे, दैट वाज अ नॉर्म, ठीक है। अब लास्ट 5 साल से सबने ड्रिंक्स छोड़ दिए, तो मैंने क्या किया, सुधरे व्यक्ति, मैं सुधरा, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो मैंने मेरे सर्कल को पहले क्लीन किया। खुद को क्लीन करोगे, अपने घर को क्लीन करोगे, उससे समाज क्लीन होगा, समाज से देश ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। मोदी जी ने एक लगाया था स्वच्छता अभियान, उन्होंने क्या बोला कि आपके घर को क्लीन करो। तो मोमेंट एवरीवन क्लीन देयर हाउस, ऑटोमेटिकली आप अपनी रोड को क्लीन करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा देश क्लीन हो जाएगा। सो हमें खुद से पहले प्राउड फील करना है कि यस आई एम अवे फ्रॉम इट एंड आई विल स्टे अवे फ्रॉम इट, ठीक है। वो आपको हमेशा से ध्यान रखना है, ऑलराइट। सो जब मैंने अब उसका सोल्यूशन और कैसे, सर आपने बोल तो दिया, इतना इजी होता नहीं है, जब वो आता है सामने दोस्त उसको मना ही नहीं कर पाते, तो उसमें आपको करना क्या है, दिस इज द सोल्यूशन। हमने बचपन में सबसे पहली चीज क्या सीखी थी, सबसे पहली चीज हमने बचपन में क्या सीखी थी, क्या सीखी थी, ABCD सीखी थी, करेक्ट। वी लर्न ABCD इन आवर लाइफ एंड बिकॉज ऑफ दैट ABCD व्हाट आई एम टुडे, आज अगर मैं इतना बोल पा रहा हूं बिकॉज ऑफ दैट ABCD, यू आर एबल टू डू वर्क बिकॉज ऑफ दैट ABCD, दैट ABCD फॉर्म योर बेस। वो ABCD आपका बेस बन गया, करेक्ट। वो ABCD के कारण आप वर्ड बना सकते हो, वर्ड से आप सेंटेंस बना सकते हो, सेंटेंस से आप पैराग्राफ बना सकते हो, आप स्पीच बना सकते हो, यू कैन टॉक, यू कैन स्पीक, you can understand. It was so strong. Now today I'll give you one more ABCD which will ensure that your future path is so strong. Are you ready to learn that? Yes. Are you ready to learn that? Correct. ऐसे कोई है यहाँ पे जो सेम दिखते हो खड़े हो जाए, जो सेम दिखते हो वो खड़े हो जाए, हैं? आशा जी ने बताया कि उनकी ट्विन डॉटर्स है, तो सेम दिखते हैं एग्जैक्टली, सारे सेम फीचर्स हैं, सेम। एक को पिंपल है तो दूसरी को भी पिंपल है, पक्का, श्योर, ओके। सो ये एक्सेप्शनल केस है। योर वे ऑफ अपीयरेंसेस इज डिफरेंट, व्हाई डू यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हम कंपेयर करते हैं ना दूसरों से, करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना, कि वो मार्क्स उसके अच्छे आ रहे हैं, वो अकाउंट्स में अच्छा है, करो कंपेयर, बट कंपेयर करने के बाद खाली नेगेटिव कंपेयर मत करो, उसको पॉजिटिव भी करो। हम ये क्यों नहीं बोलते कि उसका मैथ्स में अच्छा था, अरे फॉरगेट अबाउट दैट, मैं डांस में अच्छा हूँ, बस आई एम गुड इन दैट,
आई एम नॉट गुड इन अकाउंट्स, आई एम गुड इन टॉकिंग, मैं वो करता हूँ. So first thing what you do is A for acceptance. You accept whatever the Almighty has given to you. Do you accept that? Yes. Do you accept that? So morning में every morning क्या करना है, उठ के कांच में जाके सिर्फ देखना है कि I accept whatever I am. क्या करना है? I accept whatever I am and I am perfect. ये आपको बोलना है सिर्फ सुबह डेली. I accept myself the way I am and I am perfect. The moment you will accept yourself, चाहे मैं दुबला हूं, पतला हूं, काला हूं, गोरा हूं, एक हाथ नहीं है, forget about that fact. जब ऑलमाइटी ने आपको बनाया है तो आपको डिफरेंट बनाया है. जो यू जो मैंने डिवाइड वो बनाया है, यू मीन्स व्हाट? यू आर ओरिजिनल एंड यूनिक. यू आर ओरिजिनल. आप किसी की कॉपी तो हो नहीं, ओरिजिनल हो और यूनिक हो, है ना. भगवान ने ऐसा तो नहीं, एक सैंपल हम बनाते ना, हम बिजनेस में नॉर्मली करते हैं, हमारे फुटवेयर में बहुत करते थे पहले बॉम्बे में, कि जब सपोज एडिडास ने जो फुटवेयर बना दिया, हम उसी को लाते थे, उसकी कॉपी बनाते थे. उसको बोलते हैं कॉपी करना. ठीक है. सो व्हेन ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड यू, इट डिड नॉट पुट फॉर दिस माइंड कि ऑलरेडी एक क्रिएचर मैंने बना दिया, उसके थोड़े स्पेसिफिकेशन चेंज कर देता हूँ और मार्केट में एक नया बना देता हूँ. नहीं. व्हाट डिड ही डू? ही मेड ईच इंडिविजुअल यूनिक एंड ओरिजिनल. ओरिजिनल है वो और यूनिक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ओरिजिनल एंड यूनिक. सो व्हेन यू नो दैट यू आर ओरिजिनल एंड यू आर यूनिक, यू नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट. Start accepting that. When I was young, I was not good in all these subjects. I was dumb. लोग बोलते हैं इसको कुछ बोलने नहीं आता, करने नहीं आता, क्या करेगा. बट एक ऐसा पेपर था मैथ्स का जिसमें मेरे को 100 आउट ऑफ 100 आता था. मतलब हर एग्जाम में फुल ऑन फुल, एक मार्क्स नहीं कटा कभी लाइफ में. So I was proud of that. I accepted that I am not good in Marathi. I am not good in science. Forget about that. But I know I am good in maths. I know I can, clear CA exam, and I know I can speak. So I am doing that. So the moment you start accepting what you are, you will start believing in yourself. The moment you accept yourself that yes, I am perfect as I am, my imperfection makes me unique and perfect. And I will not focus on my imperfection, but I will focus on what I am perfect at. If I am good in speaking, I know I am good in speaking. मैं क्यों सोचूंगा कि मेरे को रिटर्न फाइल करना है? मैं वही करूंगा ना जिसमें मेरे को आई एम परफेक्ट इन. आई नो आई एम गुड इन स्पीकिंग. मेरे को रिटर्न फाइल नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा. सो द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू. I accepted the fact that I'm not good in science, I'm not good in numbers, I'm not good in accounting, I'm not good in auditing. I accepted that fact. The moment I accepted the fact, I changed my mind that what I'm good at, that I realized that I can convince people, I can become a motivational speaker, or I can give different perspective to the people. So I believed in that. The moment I believed in that, I was able to execute lot of things. और ये कैसे होता है कि जब आप खुद को बिलीव करते हो ना, तो एक्चुअली में पूरे वाइब्रेशन ऐसे आते हैं कि जहां पे आपके फेवर में चीजें हो रही है. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ ऑरा, जो हम बोलते हैं ना ऑरा या वाइब. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट. और ये ऑरा और वाइब कैसे होता है पता है क्या? ये हम जो सोचते हैं ना उसी से होता है. द मोमेंट आई थिंक नेगेटिव ना किसी के बारे में, हम बात ही नहीं कर पाएंगे. द मोमेंट आई एम फीलिंग पॉजिटिव, तो हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा. हम कोई इवेंट में जाते हैं ना, तो हम सपोज 1000 लोगों को मिल रहे हैं, 1000 लोग के इवेंट में जा रहे हैं, तो क्यों हम सिर्फ 5-6 लोगों को ही कनेक्ट कर पाते हैं? एक स्पार्क हो जाता है. द मोमेंट यू स्पीक टू देम फॉर फ्यू सेकंड्स, यू फील लाइक दैट यू शुड टॉक मोर एंड मोर. व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज समवेयर योर ऑरा मैच, योर थॉट प्रोसेस मैच. कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका नेगेटिव होता है, तो आपका ऑरा मैच नहीं हुआ. बिकॉज कितने लोग आप स्माइल करते हो तो सामने वाला भी स्माइल करता है. बिकॉज समवेयर दैट ऑरा मैच. कहीं आप स्माइल करते हो सामने वाला स्माइल नहीं करता है, बिकॉज दैट वाइब इज नॉट मैचिंग. इट्स काइंड ऑफ अ पजल. पजल में कैसे पीसेस बहुत सारे हैं, लेकिन वही तो ज्वाइन होंगे जो एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट है. ओके, सो सेम वे यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ. द मोमेंट यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, you will create an aura within yourself that whatever I am best at, because I have accepted the fact that I have only one hand and I can work with the another hand. मतलब एक ही हाथ है मेरे पास, तो मैं एक हाथ से ही काम कर सकता हूँ. You have accepted that. तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस लाना बहुत जरूरी है. जो भी मैं हूँ, जैसा भी हूँ, मैं बेस्ट हूँ और वो चीज से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. You will start believing that. Believe करने के बाद C is for the consciousness, that is the conscience. That what is right and what is wrong for me. That's a basic thing. You all are
learned people over here. हमको बेसिक थॉट प्रोसेस पता है कि मुझे वहाँ पे टॉप ऑफ द माउंटेन पे जाने के बाद मेरे को उसमें कूदना नहीं है, बिकॉज आई नो दैट इज नॉट गुड, आई कैन लूज माई लाइफ. तो वो सिखाने की जरूरत नहीं है. हम जब रोड क्रॉस करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि भाई रुक जा, तेरी स्पीड बता कितनी है. हम बोलते हैं क्या ट्रक ड्राइवर को, भाई रुक रुक रुक, स्पीड बता मेरे को लिखने दे और मैं देखता हूँ कि डिस्टेंस अपॉन टाइम में ट्रैवल कर पाऊंगा कि नहीं. व्हाट डू यू यूज योर माइंड. योर कॉन्शियस सेज दैट यू शुड क्रॉस द लेन और नॉट. एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि दिमाग लगाया नहीं, फटाफट कर दिया. जो आपको ये माइंड को अलर्ट रखना है हमेशा, एवरी पॉइंट इन टाइम यू हैव टू कीप योर माइंड अलर्ट एंड टेक डिसीजंस. जो लोग सबकॉन्शियस माइंड में होके वो डिसीजन लेते हैं, उसके डिसीजन फॉल्टर होते हैं. दैट इज द रीजन मेनी टाइम यू सी दैट आपके फ्रेंड्स में देखते हैं जो पीते हैं और पीने के बाद कॉन्शियस में होते नहीं है, सबकॉन्शियसली बात करते हैं. तो कुछ भी बात करेंगे बिकॉज उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो थी वो चीजें बात करेंगे. अरे यार तूने मुझे मारा था उस दिन, तो तूने ये किया था, वैसा किया था, वो किया था. दे विल टॉक रबिश. सो again to the point, you should not get into something toxicated substances which get you into a state of mind where you're not in a conscious mind. And if your mind is not into a constant conscious state, the decision which you take might lead to very difficult repercussions you might have, which you might not know. कितने लोग ऐसे ही पीते पीते चलते चलते लाइफ मतलब रोड पे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है. कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज वो कॉन्शियस माइंड में डिसीजन नहीं लेते हैं. जितने भी लोगों ने सुसाइड की होगी वही पॉइंट पे क्यों किया? प्रॉब्लम तो बहुत टाइम से थी, वही पॉइंट पे क्यों किया? बिकॉज वो पॉइंट पे उनका माइंड चला ही नहीं. क्यों नहीं चला? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस. दे कुड नॉट, दे वर इनटू प्रेशर. दे टुक दैट स्ट्रेस सो हैवी that mind stopped working and they took that call. So you need that. You know that this is wrong. तो उसको ट्राई करने जाना भी नहीं है. जब मुझे पता है वहां से मैं वहां पे जाके गिरू जाऊंगा तो वहां जाना नहीं है. टू बी सो डिटरमाइंड. सो आर यू डिटरमाइंड टू स्टे ड्रग फ्री एंड अवे फ्रॉम ऑल दिस सब्सटेंसेस? आर यू डिटरमाइंड? यस? पक्का? श्योर? तो अगर आप डिटरमाइंड रहोगे कि मुझे इससे बाहर रहना है और ये चीजों से मुझे नहीं जाना है, यू विल एक्चुअली एलिवेट योरसेल्फ. ई इज फॉर एलिवेट. दैट्स हाउ यू एलिवेट. तो आपको क्या करना है? ये तो मैंने ड्रग्स के हिसाब से आपको बोल दिया कि ABCD. ओके, आई एम नॉट कोरिलेटिंग इट टू ड्रग्स एंड ऑल दिस टर्म्स बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट. बट लेट मी टेल यू, आपको लाइफ में कभी भी स्ट्रेस आए, ओके, लाइफ में कभी भी स्ट्रेस आए ना, ये ABCD को एक बार देख लेना. पहले तो आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ चलो ये सिचुएशन जो है क्यों हो रही है, बिकॉज कुछ ना कुछ इशू है. The moment you will start accepting that, you will find the solution around it. That yes, the problem is there. Now I have to discuss. उससे ही आपको solutions मिलना चालू हो जाएगा. The moment you start, thinking about solution, your belief system will be stronger. कि yes, I can do it. I can find a solution. और जब belief system strong होगा तो वो conscious जाग जाएगा कि मुझे क्या decision लेना है. तब जब आपका वो दिमाग काम आएगा कि एक decision लेने के repercussions क्या होगा, ये डिसीजन लेने से फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये डिसीजन लेने से मेरे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, मेरे फ्रेंड्स के इसमें क्या इम्पैक्ट होगा, वो चीज आप सोचोगे. जब वो सोचोगे देन यू विल बी एबल टू टेक योर डिसीजन एंड यू विल बी डिटरमाइंड टू वर्क अपॉन दैट डिसीजन एंड दैट्स वेयर यू एलिवेट योरसेल्फ. ओके, सो कीप दिस पर्टिकुलर थिंग. ये आपको प्रेजेंटेशन दे देंगे छोटा छोटा. अगर हम सबके डेस्क पे अगर ये लग सकता है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, the first thing you go in the mirror and say yourself that I accept myself. The moment there is acceptance about the situation, about yourself, you will stop comparing yourself with others. You will start accepting that particular fact. Okay? एक मैंने example share किया था कि how you learn from the experiences. Okay? Learn from your own experience, कि हम खुद experience करें, और learn from the experiences of others. So there's a एक बॉलीवुड एक्टर है ना, काफी चीज ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं. आवाज करना ना. And I met these couple of guys in college, and they said that you try this stuff out, man. I mean, all your inhibitions come out and all that stuff. I said, what is this? So he says it's a joint. I said, I've done too many joints in school, man. I mean, it doesn't matter. So then he took out some powder, and he says you got to kind of put it on a paper and you got to smoke it. So I tried it and I felt sick initially, but I wanted to do it just to get
out of my inhibitions. And it got me out of the inhibitions, but it got me stuck into that rut, which was so bad that I got into it. I mean, I was into it for 10 years. I did everything possible in the medical book, from cocaine to heroin to uppers and downers to hallucinogens to peyote to everything possible, you know. And I learned what life was. I learned how people enjoy without being mind altered, you know what I'm saying? Because being on drugs, you're always hiding, you're always running. And I found that freedom, you know, out there. And that was the time I decided that I'll be high on life, I'll be high on work, I'll be high on family, but never on drugs. Never, ever on drugs. So what did he said? He said 5 things in this video. Okay. The one thing what he said was, it not just affected him, but it affected his family as well. Okay, his father, his mother, and he came from a very good family. His father was a politician. He had good amount of money. And इसका खुद का करियर इतना पीक पे था. अब यहाँ पे किसी के फादर तो पॉलिटिशियन है नहीं. Just imagine if you get into all these things, the kind of repercussion your family members or you will face. Number 1. Number 2, he said that for what I am living drugs is for myself. आप सोचो ना, पहले खुद के लिए करना है, दूसरों का नहीं सोचना कि खुद के, बिकॉज योर लाइफ इज योर ओन लाइफ. इनके कोई फ्रेंड बचाने नहीं आए. जो फ्रेंड ने उनको हाँ पहले बोला था ना एक बार ट्राई कर ले कुछ नहीं होगा, ही सेज ना इट्स नॉट अबाउट ट्राइंग आउट. लोग बोलेंगे ट्राई आउट कर लेना यार एक बारी. व्हाट डिड ही सेड? इट्स नॉट अबाउट ट्राई आउट, लेना ही नहीं है आपको. ही लर्न दिस लेसन इन अ वेरी हार्ड वे, वेरी हार्श वे, डिस्पाइट हैविंग ऑल द लग्जरीज ऑफ देयर लाइफ. डिस्पाइट हैविंग all the luxuries of the life, we might think, जो हम सोच सकते हैं वो सारी लग्जरी उसके पास थी, still he went into it, he never realized it. उसने क्या बोला कि एक बार ट्राई आउट तो कर ले, but I never realized it, I went into it. But जब आप रियलाइज करने के बाद भी नहीं निकल पाए, that means the kind of repercussion he faced. And the 4th point he said that you should be high on life. You should high on work what you do. किक आनी चाहिए. किक जैसे इन्होंने कहा, द वे शी वर्क इनटू एडवाइजरी, उनको किक मिलती है. ही सेड व्हेन आई गो एंड आई टेक सेशंस और समथिंग, आई मोटिवेट पीपल, दैट्स द किक व्हाट ही गेट्स. सेम वे व्हेन यू गो टू द ऑफिस, इफ यू आर एबल टू अचीव समथिंग, इफ यू आर एबल टू गेट गुड यू नो ऑडिट ऑब्जर्वेशन, तो वो किक मिलनी चाहिए. किक ऐसा बनाओ कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, नॉट जस्ट इन योर लाइफ बट पीपल अराउंड यू. तो जब आप वो किक आएगी ना, आपको वो मिलेगा ना, तो बहुत मजा आएगा. सो इवन आई से आई हैव एडिक्शन, बट आई हैव एडिक्शन ऑफ वैल्यू एडिशन. आई हैव एडिक्शन ऑफ वैल्यू एडिशन, एडिंग वैल्यू टू द इकोसिस्टम वेयर आई एम, wherever organization I'm working with, whatever the work kind of work I'm doing, I always strive to add value to the conversation I am having, the communication I am having with the people around me. That's where you add the value. तो वो हाई होना चाहिए, वो किक होना चाहिए. तो लाइफ में वो किक आप ध्यान रखना है. So let's together make a difference in our life, not just in our life, but the surrounding which is there around us. Which is very good to see that everyone in one voice said that we are away from it, which is the best part. And I always love about this community as a chartered accountancy firm, क्योंकि हमको एक चीज सिखाई जाती है that we are not just a chartered accountant, but we are social animal who is looked upon by people that yes, अगर आपको एक पर्सन का बिहेवियर या कल्चर देखना है या कैरेक्टर देखना है ना, आप एक सीए को देखो, हाउ वेल मैनेज ही इज. हमारे एथिक्स में भी हमको क्या बोला जाता है कि आप एक चोरी भी करोगे ना तो आप पे एथिकल केस हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज यू हैव बीन सीन सच अ वे इन दी सोसाइटी. आपको आप एज अ पर्सन इज looked as in a very different way, not just as a professional, but as a person also you have been looked into a different way, because they think that you can become role model for the others. So दूसरों के रोल मॉडल बनने से पहले खुद का मॉडल सही कर लो, ठीक है? So if you want to become role model for the others, the model which I am today, I have to reshape myself by being the best person of myself, that is the best version of myself. Okay? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और आपको ये डिफरेंस आपके लाइफ में लाना है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाना है, आपके ऑफिस में लाना है. आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए
The moment you enter in the office, you should feel that vibe should come that yes, आज कुछ तो नया सीखने मिलेगा, आज काम नहीं करना है, आज कुछ सीख के जाना है. Just change this thought process from tomorrow onwards and from Monday onwards and see the change you will find in your life. कल ऑफिस चालू है? हाँ तो कल से. So कल से आप चालू करना कि आज मैं ऑफिस जो जा रहा हूँ कुछ सीखने जा रहा हूँ. मतलब घर से निकलने के पहले ये डिसाइड करने जाना कि मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ. And the kind of learning you have, and at the end of the day, when you start writing what did you learn today, you will able to understand that where you are standing today. ठीक है? So that is what you have to do. तो एक pledge ले सकते हैं हम? Sure? पक्का? Done? उसके पहले ना मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ. किसने लोगों ने बोला कि सॉन्ग वगैरह पसंद है, और किसी ने जब मैंने इनको पूछा कि आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है तो ये नहीं बोल पाए. तो अभी ये मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं इनको एक सॉन्ग देके जाऊँ. So I'm giving you one song. Wherever you feel low, wherever you feel down, you can listen to this music and you can feel fresh. ठीक है? So you should get addicted. That's not wrong, but addiction to what? He said, someone said कि experience करना चाहिए सब. क्या experience करना चाहिए? Good experiences. Okay. If you love traveling, go and travel. If you love singing, sing. If you love dancing, do dance. No one will stop you. So fitness. He spoke about fitness. अगर आपको addiction है तो 2 घंटा जिम में बिताओ, फिटनेस पे काम करो. पोयम लिखना पसंद है तो पोयम लिखो, बट डू व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट. डोंट जस्ट कॉपी अदर्स एंड सी दैट व्हाट दिस ड्रिंकिंग एंड ऑल दिस लीड टू. तो आपको एडिक्शन रखना है, पर अच्छी चीजों का एडिक्शन रखना है. ठीक है? सो आर यू विद मी? व्हाई वेट? ठीक है? तो एक छोटा सा हम मेडिटेशन करते हैं. यू अंडरस्टूड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. जस्ट ओपन योर फोन. सब अपना फोन निकालो, उसको फ्लाइट मोड या जो है जैसा रहने दो. सो राइट 3 things what you want to achieve in your life. 3 things what you want to achieve in your life. Okay, that can be an immediate goal. ठीक है? किसी को लिखना है कि ITR फाइल करना है, वो भी लिख सकते हो. 3 things what you achieve, that depends upon what kind of vision you have. 3 things what you want to achieve in your life, you personally want to do. Correct? The moment you write, you just have to say yes. एक yes आया. Okay, now everyone close their eyes. ठीक है? Just think जो आपने तीनों चीज लिखी है उसको आपको ध्यान में है ना? पक्का एक बार देख लो स्क्रीन पे, नहीं याद है तो. All right? So 3 things what you have written, you know that what you have written that you want to achieve in your life. Now let's start. Take 3 deep breaths. You're standing in front of the mirror and you are saying to yourself that I accept myself. Say in the mind that I accept myself. I accept the way I am. I accept my imperfection. At the same time, I embrace my perfection. I know I'm not good in cricket, but I'm good in dancing. I know I'm not good in singing, but I'm good in drawing. So think about your imperfections and keep that aside. And now think about your perfection, what you are perfect at. Say in your mind that I am perfect in this. Like for example, I'm saying I am perfect in speaking. The belief system in me is getting activated. I'm getting a positive vibration that yes, I can do it. Say loud in your mind that yes, I can do it. Now the belief system has become stronger. Your conscience is saying that what is right and wrong for me. You believe that you can do something. Now just decide on what is right. Whatever I have decided, is it right for me or bad for me? What are the repercussions I can face by doing what I want to do? Whether I'll be able to do justice to what I'm doing. The results what I want, are those results are good for me or bad for me? You got your answer that yes, the whatever I'm thinking is good for me. Now be determined. Be determined of the fact that yes, I will be able to do whatever I have decided, and I have decided that yes, it is good for me. For example, I had written that I want to become a super motivational trainer.
I'm thinking that yes, I have become that motivational speaker. If you think that I want to achieve, I want to become a chartered accountant, just imagine that you have become a chartered accountant. You're standing on top of the mountain with the hands raised towards the universe, and you are saying, yes, today I have achieved whatever I want to achieve in my life, and I have elevated myself. Have that big smile in front of the universe and say, yes, I have achieved it. I have achieved it. I have elevated myself. I have elevated myself. And I am experiencing the real high in my life. The high which I wanted to always have. The kick which I wanted to have to achieve the goals what I've written. Yes, I have elevated myself. Yes, I have elevated myself. I have elevated myself. Slowly take 3 deep breaths and open your eyes. Now you can open your eyes. How did you feel? Did you feel that did you achieve something? Can someone come forward and share their experience? But to discard or to disconnect with all those thoughts, you were there in the moment. You understood that what 3 things what you want to achieve in your life. Anyone would like to share their experience and come forward and say that these are the three things which I wrote. So I want 4 or 5 people who should come forward and share their experience. Take this opportunity, ठीक है? ये अपॉर्चुनिटी लो कि यहाँ पे आके आप कुछ बोल सकते हो, all right? So take this opportunity and come forward, all right? Don't worry about the fact कि कोई क्या सोचेगा, मैंने क्या लिखा या मैं बोल पाऊंगा कि नहीं यहाँ पे आके. Don't worry about the fact. Just come forward and share whatever you want to share for today's whatever we did and this last meditation what we did. Anyone? Very nice. Can we have a big round of applause for her? Thank you so much for elevating our thoughts. Right now, I'm feeling so calm and so. No, you can just keep this. Okay. Right now, I'm feeling so happy, elevated in your words. So, for me, the 3 things were to see myself in a position in my professional journey at a high where I am leading litigation cases and I'm doing really good at it. The second thing was, along with it, I am taking care of my body and I'm working out regularly. And the third thing was parenting my kids in a very, very conscious way. So these were the 3 things that I had written for myself. And when I saw myself there, and right now when I'm speaking to you all, I'm just feeling a content. I have no other words, but just that contentment of reaching there and being at my happiest. I'll share my experience. In 11th standard, I got second rank in my educational field. matlab, I am second in second class topper. Okay, but at the time, my teacher said that come forward and speak how you feel. So the 3 things that I had written was first was good health. I was in a very bad shape a few years back, and I've gotten back into the best fitness that I could have been, and I'm working on it on a daily basis. And I've eradicated my thyroid completely. So that was on my first thing. Second thing was traveling. I want to travel places, meet people, see different cultures. So that is what I'm wanting to achieve in the next few years. And the third thing was making my parents proud of myself. Well done. Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak. One of the things that I have written was to become a chartered accountant in the upcoming years. I wish that I will work hard on the same goal of mine with all my dedication to become one. Another thing was having a great physique, which was one of the
अगर आपने कोई हीरो को देखा जिसको आप अपना मोटो गोल बना देते हो कि यस वो हमारा ड्रीम फिजिक है उसको, तो फिर अभी उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम चालू करेंगे हल्लू। एंड थर्ड वन वाज मेकिंग आवर पेरेंट्स प्राउड कि मतलब स्टार्टिंग से लेके उन्होंने कभी कुछ भी कम पढ़ने नहीं दिया है हमें। सो नाउ इट इज़ आवर टाइम टू गिव देम समथिंग इन रिटर्न विच दे डिजर्व, एंड दैट इज़ व्हाट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बिकम। सो द फर्स्ट जो मैंने लिखा था वो था जो मुझे भी सीए बनना है। एक्चुअली मेरा अटेम्प्ट बहुत करीब आ गया है, बाय नेक्स्ट ईयर अगर सब अच्छे से हो तो मैं सीए बन जाऊंगा, ऐसा अभी केस चल रहा है। तो फर्स्ट थिंग तो मैंने वही लिखा था। सेकेंड वॉज जब मैं 10th में था ना तो मेरा वेट था 45 केजीज, अभी मेरा वेट है 65 केजीज। तो वो एक चीज़ मैंने अचीव थोड़ी बहुत कर ली है और मुझे आगे भी और उसको एनहांस करना ही है। एंड थर्ड इज पापा को एक कार गिफ्ट करनी है उनको। अभी नेक्स्ट टाइम देखना कौन सी कार गिफ्ट करनी है, बिकॉज़ अपने पास क्या नैनो भी आता है और मर्सिडीज भी आती है। डेफिनेटली मर्सिडीज आती है। फैंटास्टिक। First of all, thank you, sir. Your sessions are very helpful for me. And in that, I have achieved and written the 3 things. First, I have to become the successful chartered accountant, where I will get the respects in the societies. And secondly, I make my parents proud and take to a high level, where the people will tell that this is your son. And thirdly, I should actually I love to write articles. So I am good to achieve the things in coming years, so, to write more on that and make best of in it. So I'll tell you my story when I was pursuing CA. Okay. तो जब मैं CA बन गया उसके बाद लाइफ में मैं कभी भी फेल नहीं हुआ था। When I was pursuing my CA, I did not fail in entire my education background. फर्स्ट से लेके 12th तक ग्रेजुएशन किया, CA फाइनल भी आ गया, everything in first attempt. But when I was on final, my father met with an accident. 9 month he was on the bed rest, and I was at home. और हमारे कल्चरल वैल्यूज ऐसे हैं कि मैं पापा के रात को कम से कम 1 घंटा डेली आई यूज्ड टू बी विद हिम एंड उनको मैं फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज कराता था। ओके, सो पापा ने वो चीज देखी, पापा ने बोला कि यार तुम सीए फिर एग्जाम कैसे दिया था? तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई वाज अपीयरिंग, so my father said you go away from home, you be in the library. So there was an hostel, he sent me there mandatorily 3 months prior to my exam. एग्जाम दे दिया मैंने, एग्जाम देते जब रियलाइज हुआ पढ़ाई तो कर ली, जब एग्जाम देने की बारी आई, आई अगेन केम बैक टू माय होम। आई सेड पापा एग्जाम तो आप लोगे तो देखूंगा तो एक नई मोटिवेशन मिलेगा। I came home and I appeared from my house. I didn't there on in the hostel. I cleared CA first group in first attempt और वहाँ पे second attempt लग गया। और मुझे कितने attempt लगे? 4 attempt लगे to clear my CA final exam. 4 attempts. At one point in time, my father told me कि मत कर business में आ जा, because मारवाड़ी family है, मतलब कुछ भी नहीं करेगा धंधा तो कर लेगा। But my father said that कुछ नहीं, 4 अटेम्प्ट हो गए। उनको भी लगता नहीं कि आपका रोज जब भी रिजल्ट आता था फैमिली वाले पूछते कि बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, पास हो गया कि नहीं, पास हो गया कि नहीं। बट आई वाज डिटरमाइंड इनफ कि मेरे को सीए बनना है तो बनना है। एंड आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स, द 5th attempt I gave with full confidence and everything I did, and I could pass into that exam. But that is not there. पास होने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, that will be more than anything else in your life. More than anything else in your life. And when I say that you are unique and you are original, I mean to it. How I mean to it? ये मैंने खुद ने रियलाइज करा जब सीए तो बन गए। जब सीए बने उसके बाद हमने देखा कि जो इंडस्ट्री में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने सीए वो सब धुरंधर है हमारे से। लाइक सुभाष जी अंकल है, काफी लोग ये सब अपनी फील्ड में मास्टरी है। तो मुझे डर होता था कि मैं क्या कर पाऊंगा यार। आई यूज्ड टू फील सो लो कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर पाऊंगा। इतने सब अपने धुरंधर बैठे, सब स्पीच दे रहे हैं, सब डाइस पे बैठे, कोई टैक्स के ऊपर बोल रहा है, कोई जीएसटी के ऊपर बोल रहा है। तो मैंने खुद से एक आवाज उठी मेरे इसमें कि मुझे, if Almighty has made you different from the others, that means you are meant to do different things. That time I realized that I am original and I am unique.
तो मैंने क्या किया कि आप कोई भी 5 साल पुराने सीए की एक ना कोई भी पीपीटी खोलना फॉर ऑल दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज फॉर यू। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप पीपीटी खोलना, आप पीपीटी जब खोलोगे तो उसकी पीपीटी में आपको दिखेगा सेक्शन 168 सेक्शन क्लॉज दिखेंगे, सेक्शंस दिखेंगे, केस लॉ दिखेंगे, ये दिखेगा करेक्ट। वो इनकम टैक्स की पीपीटी खोलोगे तो उसमें दिखेगा कि सेक्शन 68 सेक्शन 128 सब इसके बारे में, लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। That's when I realized that when you are going to take some speech, you cannot write everything on the piece of slide. लोगों को क्या चाहिए वो आपको लिखना है, आपको सेक्शन नहीं लिखना। लोग सेक्शन सुनने नहीं आ रहे हैं, लोग सुनने आ रहे हैं आपका पर्सपेक्टिव क्या है वो चीज के लिए। So my presentations were 10% of the words, 90% of the images. आपने मेरे प्रेजेंटेशन देखे अभी, ज्यादा वर्ड्स दिखे आपको नहीं। So that's where I realized I can create good PPTs and I can do good presentations. Because मेरे दिमाग से वो आया, पहले तो डर लगा कि लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो डर से मैंने कन्वर्ट किया कि मैं यूनिक हूँ और मैं ओरिजिनल हूँ। That my strength is to create words into magical images and give those images a vibrant color so that they can depict more than the words can depict. All right. So that's what you have to realize, that even you have that spark in you. You can realize that you are original in your own uniqueness. Identify that uniqueness and don't get bogged down to the fact कि मेरे से बहुत सारे सीए अच्छा कर रहे हैं। अरे कर रहे होंगे, वो उनकी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। So with this thought, thank you so much for giving me the opportunities and listening to me. लास्ट में अभी अपन एक करेंगे, आपने वीडियो में देखा था why wait, let's celebrate। ठीक है, एक प्लेज लेते हैं और ये हम करेंगे why wait, let's celebrate। आवाज ऐसी आनी चाहिए कि नीचे के लोग ऊपर आ जाने चाहिए कि हो क्या है यहाँ पे। I will stay away from drugs and all toxicated substances in my entire life, and I will make sure that me, my parents, my family members, and my friends are away from it. Thank you so much. So now what we'll do, देखो थोड़ा रिहर्सल बता देता हूँ। I will say why wait, let's elevate. Why wait, let's elevate. Proud to be drug free. ठीक है, three times we'll do it. Why wait, let's elevate. Proud to be drug free. Done? Sure? मैं माइक साइड में रख रहा हूँ, आवाज जैसी आनी चाहिए। So are we ready? Yes. Why wait? Let's elevate. Proud to be drug free. Why wait? Let's elevate. Proud to be drug free. Why wait? Let's elevate. Proud to be drug free. Why wait? Let's elevate. Proud to be drug free. Why wait? Let's elevate. Proud to be drug free. Why wait? Let's elevate. Proud to be drug free. So let's give a big loud applause like SPCM style. If you remember my first, how I teach you how to clap. Are we together or forgotten? Each one of you sitting here, they have my first lecture before you start your journey of horticulture. And I spoke you with few things on that line, that the first is I taught you how to clap. So Mudit ji should feel it, what is SPCM clapping. First person who was the president of our institute, then your partner, and now you here. It's been great honor for all my SPCM family. And as I said, each one of us with that pledge, you rightly observe that in SPCM there is a culture. So all are away from that. But now they make it pledge that not they themselves, but they will make entire family, friends, and the surrounding people also away from that. I will be failing in my duty if I do not appreciate and do not acknowledge the efforts taken by Mrs. Asha Ranka to make it this session for entire family. I would like you to be there. Asha, please. Speaker, CM Mudit Bhansali sir, all our guests,
Asha Ranka ma'am, Tejpal Ranka sir, and everybody present here. I am Riya Oswal. It's my proud privilege to present the vote of thanks for this event. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to SPCM and Associates, the Anuvat Vishwa Bharati Society, and Anuvat Samiti Pune for organizing this inspiring workshop under the initiative Elevate, Experience the Real High. In today's world, when young minds often seek direction, this initiative truly lights a spark by encouraging us to choose life, purpose, and values over temporary pleasures. I would also like to express a sincere reverence to Anurat Anushastra, our Acharya Sri Bhashramanji, whose vision continues to inspire a generation towards self discipline, moral values, and a drug free and addiction free society. A special thanks to our speaker, C. Mudit Bansali sir, for this thought provoking session, which focuses on self belief, discipline, and purposeful living and not harmful addictions. This session taken by you today is truly a testament to your dedication to your vision of empowering minds, elevating lives, and creating a better tomorrow. So every time, just make sure that make a very conscious choice of saying no to the things that are not good for you, and do it firstly for you and then for everybody around you. Thank you so much. So आज जैसे मुदित जी ने सब सीए की टीम को उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स लोगों के क्लियर कराए, और जिसमें बहुत क्लियर है कि सबको सब कुछ पता है, बट कॉन्शियस माइंड से डिसीजंस कैसे लेना, रियलाइजेशन में कैसे रहना, एंड गलत चीज़ को ना कैसे बताना, और जो आज के हमारे बच्चे हैं जो वल्नरेबल है, जो कभी कभी ये चीज़ों के डायरेक्शन थोड़े चेंज हो जाते हैं, उनको पकड़ के कैसे रखना, अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे लाना, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल वे में लोगों को समझाया। और मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत सिंसियरली सुन के, आई एम श्योर अगर आज का सेशन है जिसमें अराउंड 120 CAs प्रेजेंट थे, even if we touch 20 lives, I think so it will be a great thing, and it's a great program planned by Mahashramanji, and it's an opportunity for us to be a part of it. So thank you very much. हमको ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स सबको मालूम है, बट उसका अल्टरनेटिव क्या है उस पर काफ़ी एम्फसाइज किया. फाइंड हाई इन योर वर्कआउट, इन योर वर्क, इन फैमिली, इन फ्रेंड्स. Focus on what is good and not on what is not good. So वो काफ़ी अच्छा लगा. It was reinforced in our minds कि हमको क्या अच्छे decisions लेने चाहिए on a daily basis. So it was a very good learning. आपको लगता है कि ऐसी जो वर्कशॉप्स हैं वो होती रहनी चाहिए? 100% होती रहनी चाहिए. मैंने वही आशा जी को बोला कि who is my mother, मैंने उनको वही बोला कि this workshop with the same group should be done at least 2 times a year. ताकि अभी इंट्रोडक्शन हुआ है, देन once again in 6 to 7 months the same session at a more advanced level should happen with the same group. कि इस पीरियड में अगर उन्होंने कुछ decisions लिए which were or were not good, it can be reinforced in their brain. So they'll keep hearing about it, and then only in a child's brain it will get reinforced. So I definitely think these sessions should be continued yearly. हमारा थिंकिंग, हमारा परसेप्शन, ये सब एलिवेट हुआ है आफ्टर द सेशन. ऑल्सो एक फीलिंग कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं इट्स जस्ट अ परसेप्शन, सो वी हैव टू चेंज अ परसेप्शन. इफ़ यू सी थिंग्स एट अ पॉजिटिव परसेप्शन, तो थिंग्स विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव. इफ़ यू सी थिंग्स एट अ नेगेटिव परसेप्शंस, so thing will obviously turned out to be negative. Like when you come to an age like 18 to 21, ये ऐसा age है ना where you feel like what your friends do is the right thing than parents. Parents का भी somewhere इतना influence नहीं होता जितना एक वो एज में फ्रेंड्स का प्योर प्रेशर जो हम बोलते हैं. सो दिस इज़ द राइट थिंग फॉर द यूथ to understand till what extent should you take your peer pressure up to, till what extent FOMO होना चाहिए. जो उनके लैंग्वेज में they use the word FOMO. So to what extent the FOMO should affect them. So it's definitely for the youth. ये सेशन से एक्चुअली मुझे 3 चीज़ें सीखने मिली. फर्स्ट दैट आई हैव द पावर टू नॉट ओनली एलिवेट माई लाइफ बट द लाइफ ऑफ माई नियर एंड डियर वंस एंड द सोसाइटी. बिकॉज आज मैं जो इम्प्लीमेंट करूँगी, मेरा ऑरा और मैं
ये करूँगी कि बाकी आजू बाजू जो है वो भी वैसे ही एलिवेटेड रहे, हाई ऑन लाइफ रहे, नॉट हाई ऑन ड्रग्स और हाई ऑन नेगेटिव थिंकिंग ऑल्सो, which is also one of the drug that is affecting in this society. So this is one learning. Second, to believe in yourself and believe that you are the person and God has made you for a purpose, and believe in that and move ahead. So everything is going to fall in place as you believe in yourself. And the third thing, that dream bigger, higher, and it's all achievable. So true to what the slogan or the tagline is, elevate, experience the real high. वो high actually feel हुआ after hearing to what he said, the experiences, the stories, and the last thing that was a cherry on the cake कि जिस तरह से उन्हें हमने implement करने बोला, that meditation and the 3 goal technique. So it was really good. It was life changing in a way. These are the little things that they happen every day, but when you sit and you think about it and you know that you can implement it. So it was a very good session, and really looking forward to implement it in life. Session was impactful because it was a need of hour because all my students are been there of a age where they can make it or they can drag it. तो उसके लिए ये सेशन जरूरी था बहुत. आपको क्या लगता है कि जो आज का यूथ है, जनरेशन जेन जी है, वो इन सब चीज़ों में कितना घुस चुकी है और कैसे उनको बाहर लाया जाए? बाहर लाने का तरीका यही है, ऐसे सेशन होने चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, और पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ में दे शुड टॉक लाइक अ फ्रेंड. व्हेन गर्ल और बॉयज बिकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एज, दे शुड must share with them what are the realities of the life, how they are going to come, how that drug, because if that communication is not there, then people are attracted to these drugs, or you can bad habits, you can say. आपको लगता है कि पेरेंटिंग में कुछ बदलाव आने चाहिए? आना चाहिए. पेरेंट्स ने अभी पहले के पेरेंटिंग और अपने पेरेंटिंग में बदलाव आना ही चाहिए, बिकॉज पेरेंटिंग जब तुम बच्चों को अपने दोस्त समझोगे, उनके साथ में ओपनली डिस्कस करोगे कोई चीज़, तभी उनको ख्याल में आएंगे कि व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ रॉन्ग इन द लाइफ. बहुत ही बढ़िया एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेशन है. जैसे कि सर ने बताया हमको, मुदित जी ने, कि ये इन बच्चों के लिए नहीं जाए. आई मीन इट इज़ राइट फॉर दिस एज स्टूडेंट्स at the right time, giving them the right direction of life, because as you rightly told, a person can travel 50 kilometers, but if he does not know whether to go to right, left, north, south, then it would not be in the right direction, and he would fail in his achievements to be done in life. So staying away from the toxicating things which is communicated at this right age to these students is really going to transform life. I said, by taking this session, we are almost, from the SP7 Associates family, 120 people have attended this. If even 20 people transform their life by this session, we would achieve the target, and this 20 will multiply manyfold in the coming years, and we will have many much more of such sessions. We are already discussing right now that we will have such session at least once in a year, because the batches which come every year, the new batch would also get this idea and concept at the proper age, and which will transform their lives. We are very thankful to all.